So, good morning, friends. Welcome to Equity Question, Price Action Trading. Again, according to the our tradition, this is the last Sunday of the month, and we are meeting again. Okay, so this today's subject is a very special on a demand of the many students. We need to go through the options. So I have chosen the subject that is writers are always right. मैं कई बार बोलता हूँ सर ट्रेडिंग करते वक्त सिखा रहे हो कि राइटर्स आर ऑलवेज राइट. So what's logic behind writers are always right? This is the main motto of today's session. So today again सर पीएमबी सर हर महीने के आखिरी संडे मन की बात करते हैं. सेम वे मेरा भी सेम ही शेड्यूल रहता है. लास्ट संडे ऑफ द मंथ स्टूडेंट सेशन, discuss all the thing with student, any updation, any new strategy that I'm going to discuss today. So everyone knows me. Just a brief about myself. I'm Suhas Futwala in equity market since 2005 and I am certified research analyst, MP certified mutual fund advisor. I'm professional trader, long-term investor, and intraday is my passion. I'm a full-time trader, fundamentals or technical analysis. I would love to teach people. I would love to make them professional traders or professional investor or maybe positional traders. But priority is to make money. That's my priority. I'm official sub broker of Motilal Oswal. You can associate with me through Demat account opening. Most welcome to be associated to learn technical fundamentals. You are already learned. Demat account opening, portfolio management. My mobile number is already you are having, that is 97277 So you all aware my mentoring career already 190 plus trained students since 2016. 20 batch I just completed. Did already more than 25 plus educational webinars. Almost all are available on YouTube. Every last Sunday of the month student session that already we are conducting as of now. This is the objective of the today student session. Every month one educational webinar for newbies. जो नए लोग मार्केट में होते हैं उसके लिए भी मैं वेबिनार करता रहता हूँ. ऑलमोस्ट 1 or 2 webinar would be there every month. Develop own magnet theory to deal with the market. जो हम लोग फॉलो करते हैं मैग्नेट थियरी. So most welcome to be independent trader. So today subject is the writers are always right, sir. Why writers are always right? Because writers who are selling options. Option मतलब call or put. Call मतलब we are looking for a bull side and put matlab we are looking for a bear side if we are buyer. But writers are selling the options, so their profit is limited and loss is unlimited. So writers are well prepared with the data analysis and events. तभी वो सेल कर पाते हैं क्योंकि उनका डेटा एनालिसिस और क्या नई चीजें आगे आने वाली है इंटरनेशनली ग्लोबली व्हाटएवर इज देयर, तो वो उनके दिमाग में रहता है. देन ओनली दे आर कॉन्फिडेंट टू sell the options. That's why writers are always right. In spite of high risk, writers are earning majority of the time. वो लोग ही ज्यादा विनिंग मोड में होते हैं सर. So most of the time they are right. So always look options with the writer's vision. अगर मैं कोई भी ऑप्शन देख रहा हूँ कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तो मैं वही चीज देखूंगा कि राइटर उसको किस तरह दिख रहा है. देन आई कैन गो फॉर अ गुड ट्रेड. बिलीव मी सर. हाँ, हमेशा ऑप्शन को राइटर की नजर से देखो कि वो क्यों बेच रहा है. देन यू विल गेट अ गुड ट्रेड. सो व्हाट आर द ऑप्शंस? सो नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन. दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए ना उनका रीजन है जरूरत. जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना सर, उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं और कुछ नया इन्वेंट करते हैं. That's why called necessity is the mother of all invention. ह्यूमन हिस्ट्री में भी देख लो सर, एवरीथिंग फ्रॉम फायर टू व्हील टू करंट टेक्नोलॉजी, radar, mobile, these all are necessity as the mother of all invention.
तो सेम वे ऑप्शन वॉज इन्वेंटेड फॉर अ पर्पज ऑफ इंश्योरेंस। हम मार्केट में बड़े बड़े ट्रेड लेते हैं, फ्यूचर में बड़े बड़े लॉट बाय करते हैं, बट उनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता सर। हम निफ्टी का एक लॉट बाय करते हैं, निफ्टी इज ऑलमोस्ट 11,000, 75 का लॉट है तो ऑलमोस्ट 8 लाख का माल हो जाता है सर। बट अगर हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट में वो ट्रेड गया तो वी डोंट हैव एनी इंश्योरेंस। हमारे पास कोई ऐसा इंश्योरेंस नहीं है जिससे हम उस जो एक्सीडेंटल मूव को है उसको प्रिवेंट कर सके। तो ऑप्शन मींस इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस लेते हैं बाय पेइंग, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं 6 से 7 हजार रुपया महीने ईयरली पे करते हैं सर, बराबर है। अगेंस्ट दैट वी आर गेटिंग एडवांटेज ऑफ 6 to 7 लाख। कभी एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ी बीमारी आ गई या कुछ भी हो गया, बट उसके लिए हमको 6 से 7 हजार पे करना पड़ता है। तो अब जब भी ऐसी सर एक्सीडेंटल चीज होती है तब हमको उसका एडवांटेज मिलता है, बिकॉज वी हैव टेकन इंश्योरेंस, वी हैव सिक्योर्ड आवरसेल्फ बाय पेइंग 6 to 7,000 रुपीज पर ईयर, जो हम प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम पे करते हैं जस्ट टू सिक्योर व्हेन सम एनी एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस वुड बी देयर। और अगर समझ लीजिए वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इवेंट नहीं आया तो 6 से 7 हजार हमारा जीरो हो जाता है। नेक्स्ट ईयर हमको वापस वो पे करना पड़ता है जस्ट टू सिक्योर कि कहीं बहुत बड़ा खर्चा ना आ जाए। लेकिन जिस साल हमको ऐसा बहुत बड़ा खर्चा आ गया है ना सर, 10 साल का 6 से 7 हजार पे किया हुआ भी हमको एडवांटेज दे जाता है सर। Same way sir, option was invented to hit the big position to cover big loss. हम निफ्टी का एक लॉट बाय कर रहे हैं, हमको लगा चलो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस 11,500 के ऊपर निफ्टी बाय है और हम बाय कर रहे हैं, बट उसको हेज करना है कि हमको इंश्योरेंस लेना है कि कहीं वो गिर गया तो उसके अगेंस्ट में हम पुट बाय करते हैं, उसको हेज करते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन वाज इन्वेंटेड। बट नाउडेज ऑप्शन बिकम्स बिग ट्रेडिंग टूल फॉर ट्रेडर्स। अभी हम मैक्सिमम ट्रेडर्स ऑप्शंस को हेज के बदले ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह लेते हैं। मीन्स अगर हमको लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल बाय करते हैं, और हमको लगा मार्केट नीचे जाने वाला है तो पुट बाय करते हैं। साइमल्टेनियसली सेलर्स आल्सो थिंकिंग सेम वे कि उल्टा जाएगा तो हमको बेनिफिट होगा। तो nowadays option is a big trading tool for all the professional traders. Believe me sir, it's a reality of the option market। हाँ, कई नए लोग मार्केट में आते हैं, वो बोलते हैं यार चलो ऑप्शन में अच्छा है, सिक्योरिटी कम है, सिक्योरिटी अच्छी है, तो उसके लिए ऑप्शन का इन्वेंशन हुआ था। बट अभी सब लोगों ने ऑप्शन को अपना एक ट्रेडिंग टूल बना लिया है। इवन जो बंदा डे 1 को ट्रेडिंग करना शुरू करता है, देयर फोकस इज अ ऑप्शन में ट्रेड किया। अरे सर पहले मार्केट को पूरा समझ तो लो, ऑप्शन इज अ लास्ट गेम, ऑप्शन मस्ट बी लास्ट ऑप्शन टू ट्रेड इन अ मार्केट सर, व्हाट आई एम बिलीविंग। हाँ, अपने स्टूडेंट्स लोग, आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन इज अ वेरी रिस्कियस गेम, जीरो सम गेम। पहले अपना बेसिक क्लियर करो, देन गो फॉर ऑप्शंस। ऑप्शन मस्ट बी राइट ऑप्शन। बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, मैं अपनी बात बताऊं, मैं ऑप्शन में हर रोज ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ थर्सडे को ट्रेड करता हूं, एंड दैट्स विद द लॉजिक। आई एम हैविंग लॉजिक टू ट्रेड ऑन थर्सडे, क्योंकि मुझे सिर्फ मोमेंटम पकड़ना है, प्रीमियम ऑलरेडी कम होता है, तो मुझे चीजें थोड़ी चीपर रेट पे मिलती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम बायर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर राइटिंग साइड मोर। So believe me, it's a reality of the market as of now. We are using option as a trading tool instead of hedging tool. It's a big red signal for the market and new traders. So practical is always important than theory. Theory क्या थी सर, ये मार्केट में हेज करने के लिए ऑप्शन का इन्वेंशन हो रहा है, बट अभी प्रैक्टिकल क्या हो रहा है सर, वो चीज हो ही नहीं है। 10 to 20% प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे जो ऑप्शंस को अभी भी हेजिंग के लिए यूज करते होंगे, एंड दे आर रियली प्रोफेशनल ट्रेडर्स,
and they are disciplined traders. Otherwise सब लोग call buy करो, put buy करो, and at the end of the day result would be most of the time zero, because writers are always right. They are well prepared with the data analysis and events. So what are the call options? Call options means क्या? मतलब सी बोलते उसको, मीन्स कॉल ऑप्शन मीन्स राइट टू बाय. अगर हमको बुल साइड देखना है और हमको बुल साइड जाना है, जैसे निफ्टी अभी 11,500 है, हम सोच रहे 11,600 11,700 आएगी, तो वी शुड फोकस ऑन अ कॉल ऑप्शंस. सिमिलरली हम सोच रहे हैं मार्केट गिरेगा, वी ऑफ बेयर, देन पुट ऑप्शन मीन्स राइट टू सेल, मीन्स हम मार्केट को नीचे जाते हुए देख रहे हैं, देन वी शुड बाय पुट ऑप्शंस. कभी ऐसा मत समझो कि पुट ऑप्शन है तो सेल करना है. नो, देयर इज टू वे, चीजें बाय करना या चीजें सेल करना. अगर सीधा सीधा जाना है विदाउट टेकिंग मिनिमल रिस्क, यू शुड गो फॉर अ बाइंग ऑप्शन. अगर आप बुल है तो आपको सी बाय करना होता है, अगर आप बेयर है तो आपको पी बाय करना होता है, जिसी को बोलते हैं कॉल पुट. सर बट राइटर्स आर सेलिंग इट. सर अगर आप बाय कर रहे हो, आप कब बाय कर पाओगे? जब सामने कोई बेचेगा. सर किसी दुकान में आप कोई चीज लेने जा रहे हो, दुकानदार तभी बेच सकता है जब उसके पास हो और ही इज रेडी टू सेल. आप बाय करना चाह रहे हो, सामने वाला बेचना नहीं चाहता, उसके पास बेचने का वो गुड्स ही नहीं है, तो आप कैसे बाय करोगे? सर दैट्स व्हाई यूज्ड टू फोकस कि सामने वाला बेचेगा तभी आप बाय कर पाओगे. तो मीन्स राइटर्स आर सेलिंग इट, मीन्स दे आर एग्जैक्टली थिंकिंग एनालिसिस ऑपोजिट ऑफ योर एनालिसिस. बराबर है. आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, राइटर सोच रहा है मार्केट नीचे जाएगा या साइडवे हो जाएगा, तभी वो बेच रहा है. दैट्स व्हाई ही इज अ राइटर. इट्स अ कंप्लीटली जीरो सम गेम सर. ओनली वन कैन विन, either buyers or either writers. Writers means who are selling the options to you. जीरो सम गेम है, कोई भी इसमें पैसा ऐड नहीं करने वाला, ना एनएससी, बीएससी, ना सेबी. बराबर है सर. इट्स अ कंप्लीटली जीरो सम गेम. दोनों से में से एक ही सही है. ऑप्शन बाय मीन्स अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस, एंड ऑप्शन सेल मीन्स लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस. इन स्पाइट ऑफ दैट, writers are right to strictly avoid option writing, option selling if you are new to the market. It's a game of completely professional, well-trained traders, not for a newbies in the market. अपना exposure, अपना experience broad करो, then think to write the options. So my first red signal while doing option is avoid option writing, avoid option selling if you are new to the market. पहले अपना बेस मजबूत कीजिए, फिर ऑप्शन को राइट करना सोचिए. राइट सर. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. हाँ, समझ लीजिए कि आपको एक फ्लैट बाय करना है सर. बराबर है. और सामने वाला बिल्डर सोचता है कि मुझे बेचना है. बराबर है. दोनों तो ही चीजें होगी. मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार फरवरी का महीना चल रहा है, बजट आने वाला है, हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए और मेरा फ्लैट जो मैं सोच रहा हूँ बाय करने वाला हूँ वो महंगा हो जाए. सिमिलरली अदर साइड बिल्डर सोच रहा है कि बजट में कुछ ऐसा आया कि मैं अपना जो फ्लैट बेचने वाला हूँ ना उसका दाम गिर जाए. तो बोथ आर थिंकिंग टू कवर देयर रिस्क फॉर अपकमिंग मंथ्स कि बजट के बाद क्या हो सकता है यार. ये बायर सोच रहा है महंगा हो गया, तो सेलर सोच रहा है यार सस्ता हो गया तो मुझे नुकसान जाएगा. तो बोथ वांट टू सिक्योर देमसेल्फ. तो वो क्या करेंगे, दोनों आमने सामने बैठे हुए टू डील अबाउट फेस. दोनों को अपनी अपनी सिक्योरिटी की पड़ी है, अपना प्रॉफिट डाउन हो जाए उसकी टेंशन में है सर. तो
बाई वाला क्या, अभी देखो जनरल डील होती है तो क्या होता है, 50 लाख का फ्लैट है तो 50 लाख एक साथ तो देता नहीं है कोई, बराबर है, इट्स सिस्टम। तो बायर्स क्या करेगा, 1 लाख टोकन दे देगा, राइट सर, टोकन दे देगा, और वो अपने नाम के ऊपर फ्लैट बुक कर लेगा कि चलो भाई 50 लाख आपका प्राइस है तो आप 50 लाख के ऊपर डील डन करो, और मैं आपको 1 लाख टोकन दे देता हूँ, देन डील इज फाइनल। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बराबर है। अभी 1 महीने बाद क्या हो रहा है सर, हाँ 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ, एनी गुड न्यूज, समझ लीजिए बजट में कुछ डिक्लेयर हुआ, या फिर वो फ्लैट जो था उसके नजदीक में एक बहुत बड़ा चिल्ड्रंस पार्क बन रहा है। अभी एडवांटेज हो गया, चिल्ड्रंस पार्क बन रहा है मींस फ्लैट की वैल्यू बढ़ गई, एवरीबॉडी इज लुकिंग टू थिंक अबाउट दिस प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव, तो वो 50 लाख का फ्लैट हो जाता है 60 लाख का। अभी फायदा हो गया बायर्स को, है ना, बायर्स को फायदा हो गया, वे 50 लाख का जो फ्लैट था वो हो गया 60 लाख का। अभी समझो कुछ ऐसा हुआ कि उसको वो फ्लैट उसको प्लीज म्यूट योरसेल्फ, उसको वो फ्लैट बेचना है, चलो अभी 10 लाख का प्रॉफिट है बेच देता हूँ, तो वो क्या कर सकता है, उसका 1 लाख का टोकन किसी और को दे सकता है कि चल भाई मेरे पास टोकन पड़ा हुआ है, ऑलरेडी मेड कॉन्ट्रैक्ट विद द बिल्डर, तो ये टोकन तू मेरे पास से ले ले, बट टोकन जो है वो मैंने 1 लाख पे किया है, बट मैं उसका अभी लूंगा 5 लाख। क्यों, आपको 50 लाख का फ्लैट का वैल्यू मिल रहा है 60 लाख, तो आपको 10 लाख ऑलरेडी गेन है, और तो अभी आप वो टोकन बेचेंगे सर, तो उसका 1 लाख के अगेंस्ट में आपको 5 लाख मिलेगा, तो 4 लाख आपका प्रीमियम बढ़ा, आपने जो टोकन दी थी प्रीमियम पे किया था उसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि आपकी जो एसेट थी उसकी वैल्यू बढ़ गई, राइट सर। मीन्स मार्केट में भी, मार्केट 11,500 का कॉल आपने बाय किया है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने जो कॉल ऑप्शन बाय किया है उसका प्रीमियम बढ़ दो जाएगा। दे तेरे को, दो दे, हाँ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इट्स वेरी ओके, लीव इट। तो प्रीमियम बढ़ जाता है क्योंकि फ्लैट की प्राइस बढ़ गई सर। सिमिलरली एग्जैक्टली ऑपोजिट वी आर थिंकिंग इन अ फेवर ऑफ द बिल्डर। 1-1.5 महीने के बाद क्या हुआ, बजट में कुछ ऐसा डिक्लेयर हो गया, क्या ऐसा हो गया कि एक बहुत बड़ा डंपर होता है ना, कचरे का डंपर, बहुत बड़ा वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वहां बनने वाला है नियर योर फ्लैट। अभी इट्स अ बैड फॉर हाइजीन व्हाट पीपल आर थिंकिंग, तो वो फ्लैट की कीमत हो जाती है 40 लाख, सीधा 10 लाख गया, डाउन हो गया प्राइस। अभी राइटर्स क्या सोचेगा कि अभी अभी बिल्डर फायदा में हो, बिल्डर को क्या हुआ सर, हाँ अभी बिल्डर को फायदा हो गया ना सर, ये नुकसान हो गया सर, क्या हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका है कि भाई आपको 50 लाख पे करने हैं और फ्लैट लेना है, ये आपने टोकन ऑलरेडी दे दी है, अभी फ्लैट की कीमत हो गई 40 लाख, तो बिल्डर को फायदा हो गया क्योंकि 50 लाख पे डील ऑलरेडी डन हो चुकी है सर, बराबर है सर, तो अभी बिल्डर्स को फायदा हो गया। अभी जिसने प्रीमियम पे किया था, टोकन दी थी, वो क्या सोच रहा है सर, यार अभी अगर मैं बाई करने जाऊंगा, उसके साथ डील कंप्लीट करने जाऊंगा, मुझे 50 लाख पे करने पड़ेंगे जबकि मार्केट वैल्यू है 40 लाख, तो वो क्या सोच रहा है, यार 10 लाख का लॉस है, छोड़ो इस डील को जाने दो, मैं ये डील जाने देता हूँ, अपना 1 लाख जीरो समझ लेता हूँ। क्यों, आपकी ऑप्शन की प्राइस नहीं आई, मीन्स आपका प्रीमियम जीरो हो गया। अगर आप वो डील करने जाते तो आपको 10 लाख ज्यादा पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो, तो आप 10 लाख ज्यादा पे करना नहीं चाहते तो 1 लाख की लॉस ले लेते हैं। सेम वे मार्केट में होता है सर,
अभी हीरो और जीरो खेलते हैं ना सर, कि चलो 2 रुपए का कॉल है या पुट है, बाय कर लेता हूँ, हीरो बन जाएंगे, 20 रुपया हो जाएगा या 2 रुपया जीरो हो जाएगा, बराबर है। अभी मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है सर, हीरो और जीरो मीन्स इट्स अ कंप्लीट गैम्बलिंग। सच बोल रहा हूँ, हीरो और जीरो फॉर मी इन माई सेंस कंप्लीट गैम्बलिंग, और इट्स नॉट अ गैम्बलिंग इफ यू आर डूइंग विथ योर प्रॉफिट। समझ लो आपने सुबह कोई अच्छा ट्रेड किया, राइट, और आपको 10,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या करेंगे, चलो 2,000 का रिस्क लेता हूँ और कुछ ऐसा ऑप्शन बाय करता हूँ जो हीरो हो जाए या जीरो हो जाए, बट इट्स अ कैलकुलेटिव रिस्क जो आप ले सकते हैं फ्रॉम योर अर्न प्रॉफिट, बराबर है सर। तो दिस आर ट्रेंडिंग एज ऑफ नाउ, आई यूज्ड टू डू सर, बट दैट नॉट अ गैम्बलिंग फॉर मी, इट्स अ कंप्लीटली कैलकुलेटिव रिस्क, कि अगर 10,000 का प्रॉफिट बना चुका हूँ और ऑप्शन है और इट्स एक्सपायरी डेट, आई एम लुकिंग कि एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 रुपए का कॉल है, मैं बाय कर लूं कि वो शायद 20-25 रुपए का हो जाए या जीरो हो जाए, इट्स अ कैलकुलेटिव रिस्क। बट अगर आपका रिस्क कैलकुलेटिव नहीं है, बट आप ऐसे ही बाय कर रहे हैं कि हीरो और जीरो, मीन्स इट्स कंप्लीटली गैम्बलिंग। सो अवॉइड गैम्बलिंग इन द मार्केट। फ्लैट का एग्जांपल समझ में आया, किसी को कंफ्यूजन कोई? हेलो एनीवन? आ गया सर। सर हाँ, वो क्लियर। अगर फ्लैट की प्राइस बढ़ेगी 50 लाख के ऊपर जाएगी तो टोकन देने वाले को फायदा है, उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। जैसे मार्केट में बढ़ता है, 10 रुपए का ऑप्शन लिया, स्टॉक की प्राइस ऊपर गई तो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, आपके पास वो प्रीमियम हाई पे करके कोई भी बाय कर लेगा। और अगर आपकी प्राइस नहीं आ रही है तो हम समटाइम्स वी आर रेडी टू बेयर अ लॉस ऑल्सो, के चलो जीरो हो जाए या फिर कोई और हमारे पास से सस्ते में ले ले क्योंकि प्राइस ही कम हो गई है। तो आपका 1 लाख का जो डील है वो कोई 50,000 में मांगेगा आपके पास, आपको दे देना पड़ेगा सर, है ना, क्योंकि वो तो बाद में जीरो ही हो जाने वाला है, क्योंकि ऑन द एक्सपायरी वो प्राइस आपकी आई नहीं सर। सो राइटर्स आर सेलिंग इज मींस दे आर डूइंग एग्जैक्ट ऑपोजिट, एंड ऑप्शन बायर्स मींस जो वो डील के लिए सोचते हैं कि वो प्राइस आएगी, और राइटर सोचता है वो प्राइस नहीं आएगी, एग्जैक्ट ऑपोजिट, कंप्लीटली जीरो सम गेम। सो लेट मी मूव अहेड। अभी तक सब क्लियर है ना सर, कोई कंफ्यूजन? एनीवन? क्लियर। ऑल द स्टूडेंट्स ओके ना? ओके। सो व्हाट आर द कॉल ऑप्शंस? कॉल ऑप्शन मतलब वी आर लुकिंग, जनरली जो बायर्स होता है वो कॉल ऑप्शन को देखता है बाय करने के लिए, क्योंकि वो व्यू कर रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, इसके कॉल ऑप्शन बोलते हैं, जो हमने लाइट साइड में दिखाया। तो कॉल ऑप्शन मीन सी, उसको कैसे, अगर मैं लेमेन टर्म्स में बोलूं, एकदम सिंपल करना हो, आई एम नॉट गोइंग टू वेरी बिग वर्ड्स लाइक अल्फा गामा थीटा, आई एम नॉट गोइंग फॉर इट। मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑप्शन, मैं कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता। मैं जितना ज्यादा हाई फाई वर्ड्स यूज करूंगा विल नॉट बी मेक एनी सेंस एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर वो चीज करनी है तो मुझे 1 या 2 दिन 3 दिन में कम पड़ेंगे, लेकिन अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, 1 आवर में कंप्लीट करना है, तो आई हैव टू मेक वेरी लेमन टर्म्स दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड। अभी इधर कुछ स्टूडेंट है जो मार्केट में नए आए हुए हैं, उनके लिए ये ज्यादा बेनिफिट है, जो एक्सपीरियंस है उनको तो पता ही, देयर आल्सो एडवांटेज। तो सी मींस इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आईवी, और टाइम वैल्यू जिसको बोलते हैं टीवी, मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज करा, एक्चुअल नॉट पैरामीटर यूज करा। आईवी का मतलब इम्प्लाई वोलेटिलिटी भी होता है, बट हियर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कैसे हो रहा है? इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज based on current price and time value is always based on expiry date। हर कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है सर। जैसे कोई फूड आप लेने जाए उसकी एक्सपायरी डेट होती है ना, दवाई लेने जाए उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि भाई 1 साल बाद 2 महीने बाद वो मटेरियल इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, असर नहीं करेगा, तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। Similarly, in market, dealing with the derivative market with option and future contracts,
वहां एक्सपायरी डेट होती है, इसको वायदा बाजार बोलते हैं, जिसकी एक्सपायरी डेट होती है हर महीने के आखिरी फ्राइडे को। फ्यूचर ऑप्शंस, फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होते हैं, और वीकली एक्सपायरी भी होती है एवरी थर्सडे, राइट। पहले मंथली हुआ करता था, अभी वीकली एक्सपायरी भी है। मीन्स आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं जो हर थर्सडे को एक्सपायर होता है। आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं जो हर महीने के आखिरी थर्सडे को एक्सपायर होता है। इट डिपेंड अपॉन व्हाट स्ट्रेटेजी, व्हाट स्टाइल यू आर हैविंग टू ट्रेड। अगर आपका शॉर्ट टर्म का है तो आप वीकली के ऊपर काम करिए। अगर आपका बहुत लॉन्ग व्यू है, पोजिशनल काम करे, देन यू कैन वर्क फॉर अ मंथली ऑल्सो, और इवन ऑन अ नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। दूसरे महीने के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग ब्रॉड विजन। आप व्यू कर सकते हो निफ्टी को के मार्केट को उस तरह से, देन ओनली इट्स पॉसिबल। तो सही मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज बेस्ड ऑन करंट प्राइस, कि अभी निफ्टी का करंट प्राइस क्या चल रहा है और कितना जा सकता है। एंड टाइम वैल्यू इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्सपायरी डेट, कि कब तक वो एक्सपायर होने वाला है। फ्लैट को दिमाग में रखिए, वो एग्जांपल को दिमाग में रखिए, तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। सपोज निफ्टी अभी 11,000 के ऊपर है सर, निफ्टी हैवी करंट एट 11,000, तो 10,800 का अभी सभी स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट होगा सर। जनरली उनके बीच में 100 और 50 का डिफरेंस होता है, बट 10,850 वो इतना लिक्विड नहीं होता, बट 10,800 लिक्विड ज्यादा होता है। तो ऑलवेज गो फॉर राउंड फिगर ऑप्शंस बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। सो 10,800 का कॉल ऑप्शन, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ सर? मार्केट 11,000 पे है सर, तो 200 रुपया ऑलरेडी अंदर है अपनी प्राइस से, इसी को बोलते हैं इन द मनी। सर निफ्टी 11,000 चल रहा है और मैं सोच रहा हूं निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय कर सकता हूं, बराबर है। तो 10,800 भी मैं बाय कर सकता हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी 200 रुपया प्रॉफिट में है, प्लस उसके साथ उसकी टाइम वैल्यू रहती है। मीन्स एक्सपायरी के लिए कितने दिन बाकी है कि वहां तक वो टिक पाएगा, 10,800 के नीचे नहीं जाएगा। That's determined the time value. सिमिलरली 10,900 का कॉल है, सी बोलते हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपया है। क्यों? निफ्टी अभी 11,000 पे है, और अगर हम बुल साइड देख रहे हैं तो 100 रुपया ऑलरेडी प्रॉफिट है इन दिस ऑप्शन, क्योंकि जिस मार्केट प्राइस है उससे नीचे का कॉल हम देख रहे हैं, मंदी तेजी करने की सोच रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इन द मनी ऑप्शंस। मीन्स स्टॉक ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इन द मनी है, उसके पास पैसा है। तो जब तक ये स्टॉक उसके अभी नीचे नहीं जाएगा, इसमें फायदा क्या है सर? इन द मनी में काम करेंगे ना, आपका ऑप्शन महंगा होगा बट सेफ होगा, बराबर है। सिमिलरली 10,000 और 11,000 का कॉल ऑप्शन, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगा, क्योंकि मार्केट अभी 11,000 पे ही है। मीन्स उसका जो ऑप्शन का वैल्यू होगा वो सिर्फ टाइम वैल्यू होगा, कि बस 11,000 के ऊपर टिका रहे, उसी का वैल्यू होगा, जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। और हम इस ऑप्शन को बोलते हैं एट द मनी, मतलब एग्जैक्टली एट द निफ्टी जहां पे है वहीं का ऑप्शन हम चूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एट द मनी। सिमिलरली 11,200 हम सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो 11,200 का कॉल ऑप्शन भी अवेलेबल होता है मार्केट में, बिकॉज राइटर्स आर ऑलवेज राइट। वो लोग तो बेचने के लिए बैठे हुए ही है, क्योंकि वो आपसे उल्टा सोच रहे हैं, आप सीधा सोच रहे हैं। तो 11,200 का कॉल ऑप्शन, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है ना सर? क्यों? क्योंकि वो प्राइस आई ही नहीं है सर। एनी कंफ्यूजन सर इन दिस स्लाइड? इसको No, sir. आउट ऑफ द मनी बोलते हैं सर, क्योंकि वो प्राइस अभी आई नहीं है। 10,800 को इन द मनी बोलते हैं, क्योंकि वो प्राइस ऑलरेडी पास हो चुकी है, और वो ऑप्शन ऑलरेडी हैविंग 2,000 रुपए के एश्योर्ड प्रीमियम पर है सर, बराबर है। अभी समझ लो 10,800 का कॉल मैं बाय कर रहा हूं, उसका 200 रुपया प्लस
टाइम वैल्यू होगा कुछ समझ लो 20-30-40 रुपया, तो 230 रुपये में मैं 10,800 का कॉल बाय कर रहा हूँ, बराबर है सर। और निफ्टी 11,000 से 10,900 आ गई, बराबर है सर। आपका टाइम वैल्यू इतना डाउन नहीं होगा, बट आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपया डाउन हो जाएगा, है ना सर, आइडिया लग रहा है। ये मार्केट 100 रुपया डाउन हुआ और स्ट्राइक प्राइस जो है वो ऑलरेडी इन द मनी है। क्लियर सर, द कंसेप्ट ऑफ इन द मनी। एनी कंफ्यूजन? देन ओनली आई कैन गो हेड। कंफ्यूजन है तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए तो सर। हाँ, समझ लो निफ्टी 11,000 के ऊपर है, बराबर है सर। 10,800 का कॉल ऑप्शन में 200 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी है, क्योंकि मार्केट 200 रुपया ऊपर है उससे, और कुछ ऊपर थोड़ी वैल्यू होगी, वो टाइम वैल्यू होगी, यानी 230, 240, 250 रुपए का वो ऑप्शन आपको मिलेगा, बराबर है। इसको इन द मनी बोलते हैं। बट अगर समझो मार्केट 100 पॉइंट गिर गया, तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 200 रुपए की जगह हो जाएगी 100 रुपए की, है ना सर। ओके। हाँ, क्लियर सर। पर मार्केट 100 पॉइंट गिरे तब, और 10,900 क्या हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा सर, है ना। यस यस। 11,000 का मार्केट 10,900 हो गया, तो 10,900 अभी एट द मनी हो जाएगा, जो पहले 11,000 एट द मनी था, बराबर है। अभी समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 11,200 वो प्राइस अभी आई नहीं है। हम सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, तो वी आर फोकसिंग ऑन 11,200 कॉल ऑप्शन, जहां इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, और जो कोई वैल्यू है वो टाइम वैल्यू है कि भाई महीने के एंड तक निफ्टी 11,200 आ जाएगा, बराबर है। तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, क्योंकि उसमें मनी नहीं है, वो प्राइस आई नहीं है। तो जो कुछ भी हम पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो आउट ऑफ द मनी है, बराबर है सर। आउट ऑफ द मनी, राइट सर। टाइम वैल्यू, बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू, यहाँ टाइम वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता है। सिमिलरली पुट ऑप्शंस के लिए, पुट ऑप्शन मतलब पी, उसका भी क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस time value. Similarly, 2 points. Intrinsic value is always based on current price. Time value is always based on expiry price. Suppose Nifty is 11,000, 11,000 के ऊपर निफ्टी है, तो 11,200 का जो पुट है ना सर, वो इन द मनी हो जाता है सर। इधर ऑपोजिट हो गया, क्योंकि मैं पुट ले रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, तो मैं मंदी सोच रहा हूँ, बराबर है सर। और निफ्टी ऑलरेडी 11,000 पर है, और मैं 11,200 का पुट ले रहा हूं, तो ऑलरेडी 200 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी, प्लस टाइम वैल्यू। 11,100 का पुट ले रहा हूं, तो ऑलरेडी 100 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्लस टाइम वैल्यू, और 11,000 हो जाएगा एट द मनी, क्योंकि एज इट इज मार्केट वही प्राइस के ऊपर है, जिसको बोलते हैं एट द मनी। सिमिलरली इसमें भी आउट ऑफ द मनी होगा, जो प्राइस अभी आई नहीं है। अभी मैं मंदी की सोच रहा हूँ, मार्केट नीचे जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर अ बेयर, तो मैं 10,800 का पुट लूंगा, 10,900 का पुट लूंगा, वहां इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो प्राइस अभी तक आई नहीं है, पास नहीं हुई है। तो जो भी मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, उस टाइम वैल्यू पे कर रहा हूँ कि भाई 15 दिन में निफ्टी 10,800 आएगी, 10,900 आएगी, उसी का प्रीमियम में पे कर रहा हूँ। क्लियर सर, एग्जैक्ट ऑपोजिट। एनी कंफ्यूजन? हाँ, इनपुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन विद इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। सर अभी जो ये 11,200 का पुट है, मार्केट पे 11,000 है और 11,200 का पुट है, तो उसका जो प्रीमियम है वो 200 प्लस टाइम वैल्यू होना चाहिए क्या? हाँ, 200 प्लस टाइम वैल्यू होगा, बराबर है सर। जितना टाइम ज्यादा होगा उतना टाइम वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आगे समझाता हूँ, बराबर है वो पॉइंट। अभी कोई कंफ्यूजन सर, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में? नो सर, क्लियर। क्लियर सर। एंड क्लियर दिस बेसिक फर्स्ट। हाँ, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है इसमें, फंडामेंटल टर्म्स है। तो लेट्स मूव अहेड। अगर हम फार अवे स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, तो वो हमको सस्ता मिलेगा। समझ लो निफ्टी गई
11,000 पर है सर, और मैं सोच रहा हूँ 11,500 का कॉल बाय करूं क्योंकि मुझे लग रहा है भूल जाएगा, और अभी महीने की शुरुआत है, जस्ट एक्सपायरी शुरू हुई है, अभी और पूरा महीना पड़ा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी इज मच मोर हायर साइड। सिमिलरली मैं 10,500 का पुट सोच रहा हूँ, मंदी सोच रहा हूँ, तो वो भी मुझे सस्ता मिलेगा क्योंकि पूरा महीना पड़ा हुआ है सर वो प्राइस आने के लिए, तो मुझे ऑप्शन सस्ते मिलेंगे, बट प्रोबेबिलिटी भी कम है सर। ऑप्शन सस्ते है, एक महीना है तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऑलरेडी बहुत दूर का है, होता है 10 रुपए का 5 रुपए का मिलता है, 10 रुपया मिलता है, बट प्रोबेबिलिटी भी कम है कि भाई ऊपर नीचे भी हो सकता है ना सर। हाँ, टाइम ज्यादा है वो टारगेट करने के लिए। आप सीधी बात है, कोई अगर आप किसी फॉर्म में हो तो वहां आपको टारगेट दिए जाते हैं, आपको बोला जाता है इस महीने 2 लाख की सेल करनी है, बराबर है, और आपको बोला जाता है 1 महीने में कंप्लीट करना है, तो आप सोचिए चलो 1 महीना है ना, सामने वाला भी सोचा है 1 महीना है, बराबर है, दोनों अलग अलग सोच रहे हैं, बट अगर आपको ऐसा बोला गया 1 महीना नहीं 10 दिन में करना है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम, निग्लिजिबल हो जाती है कि भाई नहीं होगा, बराबर है। तो सिंपल वे, प्रोबेबिलिटी उसके टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है, चीपर है, प्रोबेबिलिटी बायर्स जो सेल कर रहा है वो सोच रहा है प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और बाय कर रहा है वो सोच रहा है प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि टाइम वैल्यू टाइम बहुत ज्यादा है, राइट सर। तो फार अवे स्ट्राइक प्राइस ऑलवेज सस्ता मिलेगा, बराबर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है, टाइम बहुत ज्यादा है, बट बायर क्या सोचता है, अरे यार बहुत टाइम है चलो बाय करता हूँ, बट आई टोल्ड यू सर, राइटर्स आर ऑलवेज राइट। राइटर क्या सोचता है, 1 महीना है और प्राइस नहीं आएगा, इज ऑलवेज थिंकिंग ऑपोजिट देन अस, दैट्स व्हाई राइटर्स आर ऑलवेज राइट। तो फार अवे स्ट्राइक प्राइस ऑलवेज चीपर मिलेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा, बट इट्स अ वेरी कैलकुलेटिव सेलिंग बाय राइटर्स, दे आर कैलकुलेटिव कि भाई मेरा प्राइस नहीं आने वाला इसलिए मैं प्रॉफिट में रहूंगा, पूरा प्रीमियम में खा जाऊंगा सर। नियर बाय स्ट्राइक प्राइस ऑलवेज कॉस्टलियर, क्यों, प्राइस नजदीक है और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सर। मैं 10,500 निफ्टी 11,000 के ऊपर हूँ, 11,500 का सोच रहा हूँ तो बहुत दूर है, बराबर है सर, तो वो सस्ते में मिलेगा, बट अगर मैं 11,000 पे हूँ, मैं सोच रहा हूँ 11,100 11,200, तो वो इतना सस्ते में नहीं मिलेगा, कि मार्केट भी सोच रहा है 100-200 पॉइंट, तो ऐसे ही मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, तो नजदीक की स्ट्राइक प्राइस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा सर। सिमिलरली इन द मार्केट ऑलवेज मनी इन द मनी जो बोलते हैं, यानी 11,000 की प्राइस इन द मनी, बराबर है, निफ्टी 11,000 पे है और 10,800 का कॉल बाय कर रहा हूं, तो वो कॉस्टलीस्ट होगा, क्यों, ऑलरेडी इट इज कैरिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 200 रुपीज, 200 रुपए का ऑलरेडी है, प्लस उसके ऊपर टाइम वैल्यू, बट ये बहुत सेफ है सर, बराबर है सर, मुझे बहुत सेफ लगता है, प्रीमियम भी ज्यादा पे करना पड़ता है, बट वो जल्दी नीचे गिरता नहीं है, बराबर है सर, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है, टाइम वैल्यू कम होती है, राइट सर। देखो तीनों एस्पेक्ट आपके सामने है सर, जो स्ट्राइक प्राइस बहुत दूर है, निफ्टी 11,000 है और मैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में सोच रहा हूँ 11,500 आउट ऑफ द मनी, निफ्टी 11,000 है तो मैं 11,000 समथिंग सोच रहा हूँ नियर बाय स्ट्राइक प्राइस, बराबर है सर, क्योंकि वहां वॉलेटिलिटी बहुत मिलेगी, मुझे जिग बहुत मिलेगा, तो वो मुझे कॉस्टली मिलेगा, और सबसे कॉस्टलीस्ट होगा प्रीमियम इन द मनी का, क्योंकि वहां ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, क्योंकि वो प्राइस ऑलरेडी पास हो चुकी है। कोई कंफ्यूजन सर इन तीन ऑप्शन में, कॉस्टली, चीपर, कॉस्टलियर एंड कॉस्टलीएस्ट, डिफरेंस ऑफ द 3 वर्ड, सस्ता, महंगा और बहुत महंगा, just all determined especially with the
कितनी दूर का आप स्ट्राइक प्राइस दे रहे हो एसोसिएटेड विद द टाइम, कितना बाकी है टू द एक्सपायरी। कोई कंफ्यूजन सर? क्लियर है। क्लियर है सर? यस सर। क्लियर का दो मीनिंग होता है, या सचमुच में क्लियर या ऑल क्लियर। बराबर है सर? समझ में आ गया सर। हाँ, अभी सही है सर, समझ में आ गया, डेट्स गुड। क्योंकि ऑल क्लियर शैम्पू होता है, वो सब क्लियर कर देता है सर। एट द मनी कैन बी रियल एटीएम ऑफ द टेरर इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉपर एनालिसिस। अगर आपका एनालिसिस सही है तो फोकस ऑन एट द मनी, क्योंकि वहां निफ्टी 11,000 रुपए के ऊपर है, मैं सोच रहा हूं मार्केट नीचे जाएगा, तो आई शुड फोकस 10,800 10,900, क्योंकि नजदीक का स्ट्राइक प्राइस है, वहां तुरंत मूवमेंट आएगा, क्योंकि नजदीक का स्ट्राइक प्राइस है, वहां प्रोबेबिलिटी तुरंत ऊपर नीचे हो जाती है। और अगर मैं बाई साइड सोच रहा हूँ, बुल साइड सोच रहा हूँ, तो 11,000 निफ्टी के ऊपर 1100 11,200 का स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस करूंगा। लेकिन अगर आप ग्रीडी है तो आप क्या करेंगे, 11,500 का ले लेता हूँ। बराबर है सर? बट 11,500 का प्राइस बढ़ने के लिए निफ्टी को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी रिवॉर्डेड। बराबर है? क्योंकि बहुत दूर का है, प्रोबेबिलिटी कम है, निफ्टी को ब्लास्ट होगा तो ही 11,500 का रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, सो आई एम गोइंग टू ओपन वन लिंक। दैट्स NSE ऑफिशियल साइट ऑफ द ऑप्शन। देखो इधर मैंने निफ्टी का पूरा स्लाइड ओपन किया है सर, आपके सामने है। निफ्टी का कॉल, निफ्टी का पुट, एंड एक्सपायरी इज अ करंट, यानी नेक्स्ट थर्ड वीकली एक्सपायरी। यहाँ से मैं एक्सपायरी भी चेंज कर सकता हूँ, वीकली 10 सितंबर, 17 सितंबर, 24 सितंबर, दिस लास्ट मंथली एक्सपायरी। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस यू कैन वर्क ऑन एनी एक्सपायरी। आपका व्यू लंबा है तो 24 सितंबर के ऊपर ही काम कर सकते हैं, मीडियम है तो 10-17 के ऊपर काम कर सकते हैं, बट वेरी शॉर्ट है कि चलो अभी 2 दिन में स्पाइक आ जाएगा, देन प्रीफरेबली गो फॉर 3 सितंबर। ये निफ्टी का कॉल है, इधर सब स्ट्राइक प्राइस है बीच में। देखो सर, अभी निफ्टी चल रहा है 11,600 के आसपास, तो 11,600 हो गया एट द मनी, और बाकी सब ये उसके अंदर की स्ट्राइक प्राइस है, ये उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है। दिस साइड इज अ कॉल, दिस साइड इज अ पुट। बराबर है सर? अभी कॉल्स में देखते हैं सर। बराबर है सर? तो कॉल्स में ये जो ऊपर के हैं ना, ये सब इन द मनी हो गए, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। देखिए उनका ट्रेडिंग प्राइस देखिए, 11,600। बराबर है सर? एट द मनी। अभी निफ्टी कितना चल रहा है, 11,647। बराबर है? तो 11,600 और निफ्टी चल रहा है 647, तो 47 रुपीज ऑलरेडी प्रॉफिट है। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू तो देखो इसमें 47 रुपीज ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और उसके ऊपर जो वैल्यू है वो टाइम वैल्यू है 11,650 एग्जैक्ट एट द मनी। तो उसका जो है जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलमोस्ट, और ये जो है 94 रुपीज वो टाइम वैल्यू है कि भाई 3 सितंबर तक वो 11,650 के ऊपर टिका रहे। 11,700 का कॉल देखिए, 68 रुपीज, वो प्राइस नहीं आया, मीन दिस इज ओनली टाइम वैल्यू। 11,750 48। देखो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और देखो प्रीमियम भी कम हो, 1 रुपए में ही मिलता है। ऐसा लोग सोच रहे हैं 12,400 आएगा, लेकिन राइटर्स आर ऑलवेज राइट। वो तो सेल करने के लिए बेच रहा है, लेकिन देखो उसको बाय करने वाले भी मिल रहे हैं सर। पीपल आर देयर, ही यूज्ड टू डू गैम्बलिंग विथ इट सर। 1 रुपये 25 पैसे मुझे मिल रहा है, मीन्स 75 का लॉट, यानी 80-90 रुपीज में मुझे एक निफ्टी का लॉट मिल रहा है, और उसकी प्राइस राइट पैसे वो सोच रहा है 3 सितंबर तक निफ्टी 12,400 आ जाएगा। सर एक हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि सपोज ये 12,400 का ₹1.25 में मिल रहा है, हाँ,
अगर सपोज 12,400 नहीं आया, लेकिन 12,400 की तरफ अगर निफ्टी बढ़ता है तो भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम, बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस है। निफ्टी को बहुत बड़ा 600-700 पॉइंट का जंप लगाना पड़ेगा तब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। सबसे पहले वैल्यू बढ़ेगी एट द मनी की, नियर बाय स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी। बराबर है ना सर? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट स्टिल पीपल आर बाइंग, है ना? बाइंग कर रहे हैं ना। पट्टी है दुनिया, पटाने वाला चाहिए। देखो तो इसको बेचने इसका वाला है, खरीदने वाला मिल जाता है सर। बोलिए सर। इसको मतलब मैं ये इस वजह से पूछ रहा हूँ कि ठीक है ये बहुत दूर है, इसका मतलब कि इसको लेकर के रखा भी जा सकता है लंबे समय के लिए। बट स्ट्राइक प्राइस की रिजल्ट चेंज करनी पड़ेगी, 4 दिन में थोड़ी आ जाएगा 700-800 पॉइंट का जंप। हाँ, तो देखो मैं अभी जा रहा हूँ 24 सितंबर, यानी इस महीने के आखिरी थर्सडे। बराबर है सर? तो सी लोगों ने 14,800 का कॉल भी बाय किया हुआ है। क्यों? राइटर्स ने बेचा है सर, उसको तो फायदा है। 1400 नहीं आएगा तो पूरा प्रीमियम जो उसने लिया है वो पूरा उसकी जेब में। बट अगर 14,800 आया तो हाँ वो डिफॉल्ट हो जाएगा सर। निफ्टी 11,000 14,000 आया, मीन्स ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का जंप। सोचो उसको कितना पे करना पड़ेगा। क्यों? उसने बेचा है, उसका प्रॉफिट लिमिटेड है, बस इतना ही उसका प्रॉफिट है, बट लॉस अनलिमिटेड है। उसको ऊपर का सब पे करना पड़ेगा जिसने बाय किया है उसको, क्योंकि उसका प्रीमियम वहां ₹1.90 है ना, उसका हो जाएगा 3,000 रुपया 4,000 रुपया सर। स्टिल देखो कितने बड़े रिस्क के ऊपर खड़ा है राइटर, फिर भी वो सही है सर। तो ऑलवेज विजन दिस डेटा विथ आई ऑफ द राइटर, कि राइटर क्या सोच के बेच रहा है सर, क्योंकि ही इज कैरिंग मैक्सिमम रिस्क, फिर भी वो सही है। क्लियर हुआ तिवारी जी? हेलो? सर समझ में आ गया। हाँ देखो यू कैन सी, लोग सोच रहे हैं कि इसी महीने 14,800 आ जाएगा। लोग क्यों सोच रहे हैं? कि सामने वाला बेचने के लिए रेडी बैठा हुआ है। क्लियर सर? सिमिलरली अभी वापस मैं वीकली एक्सपायरी के ऊपर जाता हूँ, दैट गिव अस अ क्लियर आइडिया ऑफ द करंट मार्केट। ये बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है। ओके, अभी दूसरी प्राइस देखते हैं। अभी ये इन द मनी, अभी पुट साइड देखते हैं। पुट साइड 11,650 600 ऑलमोस्ट एट द मनी है। बराबर है सर? तो उनका जो ये जो प्राइस है ना, जैसे टाइम वैल्यू है, इंटेंसिव वैल्यू, इसमें 11,650 11,700 ये इसका हम पुट देख रहे हैं। तो इसका प्राइस है 101, मतलब निफ्टी ऑलरेडी 50 पॉइंट डाउन है। तो इसमें 50 रुपया हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू, और ऊपर का जो 50 रुपया है वो होता है टाइम वैल्यू, कि वो 11,650 700 के नीचे टिका रहे। बट अगर आप देखने जाएंगे तो ऊपर के देखिए सब स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है ना सर। कितने कॉस्टली है सर? ये 12,100 का है 438। बराबर है? कैलकुलेशन करिए, ऑलमोस्ट सेम आएगा। इसको डेल्टा वन बोलते हैं, डीप में नहीं जाना है डेल्टा वन में। बराबर? ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अभी ये देखिए सब पुट ऑप्शन सस्ते में मिल रहे हैं सर, है ना? दे ऑल आर आउट ऑफ द मनी, वो प्राइस नहीं आई है। अगर आप बेयर साइड हो तो आप नजदीक के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम करिए। 11,650 चल रहा है, आप सोच रहे चलो 100-200 पॉइंट गिर जाएगा, तो आप 37 रुपीज में 11,500 बाई करिए, 11,400 का बाई करिए। 200 पॉइंट गिरने का सोच रहे तो 11,400 का बाई करिए, तो इट विल बी रिवॉर्डेड। लेकिन आप अगर यहाँ बाय करेंगे, देखो सर कुछ लोग सोच रहे हैं निफ्टी 9,000 आएगी, है ना? अगेन पट्टी है दुनिया, पटाने वाला चाहिए सर, वो भी बेचने वाला है, और लोग बाय भी कर रहे हैं 45 पैसा में, कि मेरा 45 पैसे में जो मैंने बाय किया है ना, उसका हो जाएगा 3,000 रुपया 2,000 रुपया, है ना सर? मिट्टी भी बिक जाती है अगर बेचने वाला स्मार्ट है।
यहाँ 9050 का पुट ऑप्शन भी बिक जाता है सर. Got the logic, sir? And that to be 3 September expiry. Means 4 September means 4 दिन में निफ्टी गिर के 2000 पॉइंट गिर के 9000 आ जाए सर. ऐसा भी सोचने वाले मार्केट में है सर. हो सकता है किसी ने हेज किया, बट कैसे वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, वो चेंज ही नहीं आएगा सर. इट्स कंप्लीटली गैम्बलिंग इफ यू आर अ बायर. And it's completely smart money if you are a seller. इधर जो बेच रहा है ना सर, हाँ, वो कैसीनो वाला है सर. उसको पता है कि सामने वाला जीतने वाला नहीं है, तो वो बेच रहा है. और सामने वाला गैम्बलिंग करता है, यार दांव लगाता हूँ, जो 45 पैसा है ना उसका, चलो 2 रुपया भी हो गया तो मेरा 4 गुना पैसा होगा. तो इधर जो बेच रहा है ना, समझ लो ये सब राइटर्स कैसीनो ही है सर. कैसीनो कभी लॉस में नहीं जाता. कभी देखा है? डेल्टा कॉर्प का रिजल्ट देख लीजिए, अच्छा आता है ना सर. कैसीनो बिजनेस है पूरा डेल्टा कॉर्प. वो कैसीनो वाला है सर. वो कभी लॉस नहीं करेगा क्योंकि इट्स अ सिस्टम ड्रिवन. उनका सिस्टम ही ऐसा है. 100 में से 20-30% लोग प्रॉफिट करेंगे और बाकी सब लॉस ही करने वाले हैं. 20-30% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ सर. इस मार्केट में अगर मैं कैलकुलेट करूँ इन इक्विटी मार्केट, इन ट्रेडिंग, F&O 2 to 3% आर सक्सेसफुल ट्रेडर्स. ऑप्शन में तो उससे भी कम हो जाएंगे क्योंकि कैसीनो ही जीतता है सर. गॉट इट सर? कोई कंफ्यूजन? हाँ, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कैसीनो एंड गैम्बलर. बराबर है सर. कैसीनो इज ऑलवेज ऑन अ विनिंग साइड बिकॉज वो प्रोसेस के ऊपर काम करता है. तो उसको पता है 100 लोग आएंगे, 2 या 3 लोग ही जीतेंगे, बाकी के लोग मुझे पैसा देके जाएंगे. सो डेल्टा कॉर्प इज गुड बिजनेस मॉडल सर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट. हाँ, मैंने 7 अप्रैल को जो पोर्टफोलियो डाला था ना, पोर्टफोलियो 100, उसमें डेल्टा कॉर्प डाउट है सर. हाँ बोलिए सर. सर ये जो आप जहाँ कर्सर आपने रख रखा है 9100 के पुट पर, हाँ यहाँ नेट चेंज में 111 रुपए माइनस बता रहा है सर. क्या सर ये? हाँ, यहाँ पर नीचे 111 रुपए माइनस बता रहा है. इसका 1 रुपया 10 पैसा था, वो कम होके पॉइंट मीन जिसने बेचा होगा ना, वो उसने 1 रुपये 10 पैसे में बाई किया है सर. नहीं, इसके नीचे वाला सर 9100. हाँ, वो 111 रुपए में बाई हुआ था. सोचो 9100 के कॉल की कीमत 111 रुपए का पुट बाई किया गया है ना. या हो सकता है सिर्फ बीडिंग रखी गई हो बेचने के लिए, बाई नहीं भी हो सकता है सर, है ना. बट पहला इसमें जनरली जो डील होती है उसके बेस के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, मींस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या था इसका? ऑलमोस्ट 102 रुपया है ना. मींस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 102 रुपये के ऊपर यहाँ पुट ऑप्शन बाय किया गया है क्योंकि सामने बेचा गया है सर. सी इरोजन ऑफ द कंप्लीट ट्रेडिंग एसेट, है ना. इधर भी देखो सर, क्लियर ना. सोचो कहां से कहां पहुंच गया सर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तुरंत गिर जाएगा ऑप्शन का प्राइस. क्यों? मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये कहां से बढ़ेगा? थोड़ा भी नहीं बढ़ेगा, कम होगा. क्लियर सर? एक भी ऑप्शन प्राइस दिख रही है जो बढ़ी हो? सब माइनस में है ना. हाँ, एक भी पुट प्राइस दिख रही है जो बढ़ी हो? नहीं सर, नहीं है ना. इधर देखो, एक भी पुट प्राइस नहीं होगी जो कम हुई हो. इधर कम हुई है. कौन सा स्ट्राइक प्राइस? 12,000 में. कुछ लोग सोचते हैं 12,000 तक नहीं जाएगा, बराबर है, तो वहां कम हुई है. मीन्स मार्केट 12,000 ऊपर नहीं जा सकता. पर इधर तो देखो सर, इधर तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही. वे कंप्लीटली नेट चेंज डिक्रीज हो रहा है. क्लियर सर? इट्स अ वन साइड ऑफ द कॉइन, देयर इज अनदर साइड आल्सो. क्लियर? कोई कंफ्यूजन अभी ये नेट चेंज में जो आपने पूछा? क्लियर सर. ओके, आगे बढ़ो समझ में आ सर. गया सर. ये चार्ट में कोई कंफ्यूजन है सर? अभी तक
ये बहुत सारी चीजें इसमें, इम्प्लाइड ऑर्डर आईवी है, इम्प्लाइड ऑर्डर है, ओपन इंटरेस्ट है, बट अगर मैं जाऊंगा तो इट विल टेक टू मच टाइम। मैं चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ जो मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ इन प्रैक्टिकल टर्म्स, नॉट थियोरेटिकल। बराबर है सर? इधर ऑप्शन के चार्ट भी आप ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। हाँ हाँ बोलिए। अभी सर आपने जो ये बोला था, अभी जो ये स्ट्राइक प्राइस है हम ले लेते 11,600। हाँ तो 11,600 में अभी इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 60 रुपीज। या कॉल पुट और 60 रुपीज। हाँ मीन्स आप मंदी हाँ। सोच रहे हैं, नजदीक का स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट नीचे है तो 60 रुपए में मिलेगा। बराबर है सर? हाँ तो सर इसमें आईवी 15 क्यों दिखा रहा है सर? वो आईवी डिफरेंट है, जैसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये वो अलग है, अपना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है सर वो। अच्छा वो नहीं ये है। आईवी जो है ना, इट शोज हाँ कि पूरे साल में कितना अप डाउन आएगा, पूरे साल का ओके है वो। बराबर है सर? ओके ये आईवी डिफरेंट है, मैंने इसलिए बोला था दैट आईवी इज डिफरेंट। बराबर, इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये डिफरेंट है, वो ओके इंट्रिंसिक ओके वैल्यू है, दिस आर डिफरेंट। इसलिए मैंने बोला था ओके कि मैंने वो आईवी यूज किया है फॉर आवर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये डिफरेंट है। ओके ओके इधर कोई साइड में कोई कंफ्यूजन, कॉल पुट कैसे होता है डिटरमाइन, और कैसे प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर। तो सपोज हमने ये 60 रुपीज में सेल किया इसको, हाँ मीन्स आप राइट कर रहे हैं। बराबर है सर? हाँ। और अगर ये 11,600 पे है अभी, 60 रुपीज पे हमने इसको पुट ऑप्शन ले ली के बेची, मतलब बेच दी, यानी आप क्या सोच रहे हैं कि मंदा जाएगा, अभी डाउन जाएगा। ऊपर जाएगा, है ना सर? नहीं पुट ऑप्शन सेल करना मतलब, हाँ ओके पुट ऑप्शन बाय करना मतलब आप सोच रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, है ना? बट पुट ऑप्शन बाय करना मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या स्टैग्नेंट हो जाएगा, साइडवे हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? पुट सेल करना मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ समझ गया आपकी बात। आप देखो, मैं वही बोल रहा था, ये दोनों को रिलेट है, जीरो सम गेम है। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। बराबर है सर? ओके ओके और इसका भी दोनों साइड है, पुट है तो पुट बाई करने वाला है, सेल करने वाला भी है, कॉल है तो पुट बाई करने वाला भी है, सेल करने वाला भी है। ओके जीरो सम गेम, बराबर ना? मीन्स आप अगर इधर सेल कर रहे हो तो सामने कोई बेचने वाला है, जो सोच सामने कोई खरीदने वाला है। हाँ जी। आप सोच रहे हैं मैं इधर सेल कर रहा हूँ 60 रुपए में, तो सामने वाला बाय कर रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं, या मार्केट स्टैग्नेंट हो जाएगा या ऊपर जाएगा? देन ओनली यू आपको प्रीमियम खाने को मिलेगा। क्लियर? ओके 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 क्लियर है सर। सेम हियर ऑल्सो। अभी 11,600 का 128 रुपया है सर, आप बाई कर रहे हो, क्यों? आप सोच रहे हो ऊपर जाएगा, बस सामने वाला सेल कर रहा है, वो सोच रहा है या स्टैग्नेंट हो जाए या नीचे जाए। गॉट इट सर? बिल्कुल ठीक है सर। अगर 60 रुपए में हम बाय करते हैं पुट को, तो इट मींस मार्केट नीचे जाएगा, हम ये कह रहे हैं। हाँ, आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तब आप पुट बाय करते हो। इसमें सर रिस्क क्या होता है? वही ना, आपने टोकन दिया 60 रुपए का, और लॉट कितना है? 75 रुपया सर, 75 का लॉट है सर, तो 75 इंटू 60 कितना रुपया आपको पे करना है, वो आपने टोकन दिया 11,600। हाँ, अगर 11,600 के ऊपर एक्सपायरी तक नहीं टिकता तो ये जीरो हो जाएगा। 33% सर, 33% ही प्रॉफिट में हो सकते हैं ना, 66 तो नुकसान नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं सोचो, कभी भी जा सकता है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज हायर फ्रॉम राइटर साइड। अब एक बात समझो सर, 11,600 पे चल रहा है, आपने बाय किया 60 रुपए में, बराबर है सर, और एक्सपायर हुआ 11,650 पर ही। हाँ, 11,650 पर एक्सपायर हुआ सर। अभी कितना होगा सर इसका, 60 रुपए का? जीरो हो जाएगा सर। क्यों? उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? जीरो। टाइम तो खत्म हो गया एक्सपायरी के वक्त, मीन्स आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, है ना सर? व्हाट द लॉजिक सर? हेलो? हाँ जी समझ गया आपकी बात। हाँ, सिमिलरली इधर भी 11,650 पे वही होगा, वो जीरो हो जाएगा एक्सपायरी के दिन।
अगर ऊपर नीचे होता है तो प्रॉफिट आएगा हमें, अगर नीचे जाएगा तो हाँ, लेकिन अगर 11 अगर मैंने बाई किया है और 11,700 आ गया, सॉरी यहाँ 11,700 आ गया, बाई किया है, तो उसका इंट्रिंसिक 11,650 का मैंने बाई किया हुआ है, 11,700 आ गया तो 50 रुपए तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हुई ना सर। बट इतना समझ लो, अगर आज एक्सपायरी है, निफ्टी चल रहा है 11,600, है ना, इज अ प्रिकॉशन आई एम गोइंग टू टेल यू, तो क्या रखना है, निफ्टी 11,600 चल रहा है, आप सोच रहे 11,000 के ऊपर जाएगा और आप 11,650 का कॉल बाई कर रहे हो, बराबर है, कॉल बाई कर रहे हो, ओके, और सोचो चलो छोड़ो नहीं आएगा, 11,640 है, अभी 10 पॉइंट थोड़ी बढ़ेगा, बट 3:30 बजे 3:32 को सेटलमेंट होता है और निफ्टी आ रहा है 11,650 रुपया और 5 पैसा, कितना आपकी स्ट्राइक प्राइस से 5 पैसा ऊपर है ना सर, मीन्स आप इन द मनी हो गए ना सर। ओके, तो आपने वो स्क्वायर ऑफ नहीं किया, पोजीशन नहीं किया होगा तो आपको पेनल्टी लगेगी सर। ओके ओके ओके, इन द मनी ऑप्शन मस्ट बी स्क्वायर्ड ऑफ, इसलिए बोला हूँ सेफ खेलना हो तो 3:15 बजे पोजीशन एग्जिट कर लो, 10-15 पॉइंट चलो नीचे नहीं जाएगा और सरप्राइजिंगली सेटलमेंट उसके ऊपर आ गया, क्लोज वहां हो गया, 5 पैसे के लिए भी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी क्योंकि यू आर इन द मनी। इन द मनी ऑप्शन कांट बी कैरी फॉरवर्ड दिस वे, गोल्ड दिस वे, आउट ऑफ द मनी है वो तो 0 हो जाने वाला है, तो आप कर सकते हैं, बराबर ना सर। बिल्कुल ठीक है सर। अंडरलाइन करके दिमाग में डाल दो, अगर आप इन द मनी है और ऑलमोस्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी है, स्क्वायर ऑफ योर पोजीशंस, अदरवाइज बी रेडी टू पे पेनल्टी। क्लियर सर? क्लियर सर। अभी मैं नीचे जा रहा हूं। सर एक चीज बताइए सर, जो ये ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड ले जाते हैं तो उसमें क्या यही चीज होगी जो आप बता रहे हैं? नहीं, कैरी फॉरवर्ड मतलब छोड़ दिया, एक्सपायर हो गया, मेरी प्राइस नहीं आई तो 0 हो जाएगा, बराबर है, पूरा प्रीमियम जो इसने बेचा है वो खा लेगा। कैरी फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं कि चलो ये 0 होने वाला है, ये चलो नई प्राइस है, छोड़ दो 0 हो गया, या मैंने सस्ते में निकाल दिया, अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक वीक और करते हैं, मैं वापस 11,600 का नेक्स्ट वीक का कॉल बाय कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ निफ्टी ऊपर जाएगा, इसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। नहीं सर, जैसे अभी आपने बताया कि 11,000 का कॉल लिया आप लोगों ने, हाँ, और वो जो कॉल था एक्सपायरी के दिन लिया आप लोगों ने, नहीं? हाँ, और उसी दिन आप लोगों ने अगर स्क्वायर ऑफ नहीं किया और 11,005 पैसा हो गया तो फिर पेनल्टी लगेगी? पेनल्टी लगेगी क्योंकि अभी इनकम ही हो गया ना सर आप, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उस दिन। हाँ, और आपको इन द मनी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी स्क्वायर ऑफ। ओके सर, मतलब ये पर्टिकुलर एक्सपायरी के दिन ध्यान रखने का है? हाँ, एक्सपायरी के दिन ध्यान रखना है सर, या एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले जो भी डिसीजन लेना हो, बराबर ना? बराबर। कई बार मैं क्या करता हूँ पता है सर, एक्सपायरी अभी तो वीकली एक्सपायरी हो गया तो इतना मॉनिटर, जब पहले मंथली एक्सपायरी हुआ करता था ना सर, मैं अपने जो क्लाइंट्स होते थे ना टर्मिनल के, मैं जाता था नेट पोजीशन में और देखता था कि भाई कोई ऐसा नहीं है ना जो इन द मनी लेके बैठा हुआ हो। गॉट इट सर? यस सर, यस। तो पेनल्टी बड़ी लगती है सर। वो कई बार तो ऑप्शन सस्ता हो तो लोग तो हजार लॉट लेके बैठे हुए होते, तो उनकी तो हालत खराब हो जाएगी सर, पेनल्टी लगेगी तो पेनल्टी फिर भी कितने लग जाते होंगे? तो अभी आइडिया नहीं है सर, दैट यू कैन गूगल इट एंड गो थ्रू द एनी सर्कुलर, बट पेनल्टी लगेगी, बराबर? यस सर, यस सर पेनल्टी इटसेल्फ इज अ बैड, कितनी लगी क्या लगी, पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल सही। इफ यू आर अ डिसिप्लिन ना, तो बी डिसिप्लिन, डोंट टेक चांस बाय वायलेटिंग द सिस्टम एंड नॉट फॉलोइंग द सिस्टम, राइट? यस हाँ सर, एक सर ऐसा ये केस सुने थे, एक ऐसे ही केस सुने थे, एक जन ने मतलब एक्सपायरी डेट पे काफी ज्यादा मतलब लॉट लिया था और उनको करीब 6-6.5 लाख का प्रॉफिट था, पर स्क्वायर ऑफ नहीं करने पे उनको जब बाद में उनको मतलब चला तो उनका करीब 24-25 लाख का वो था पेनल्टी, नेट लॉस। greed kills and you don't know the rules that more kills। एक तो आपका 6 लाख का लॉस,
प्रॉफिट था वो आपने गंवाया, हाँ, वो। प्लस ऊपर सामने से 24 लाख दिया। ये फेसबुक के ऊपर आया था पूरा, यस सर। है ना? हाँ, तो इट्स अ गुड, ऐसे पोस्ट को पढ़ा करो कि पता चले। सर अपनी गलती से सब सीखते हैं, दूसरों की गलती से भी सिखा करो। ओके सर। इस सर एक लाइन में और पूछना था आप बोले, कि ये जैसे बोलते हैं ना कि एफएनओ में ये बैन है, तो उसमें कैसे क्या ध्यान रखना रहता है? F&O ये में स्क्रिप्ट बैन है, ये स्क्रिप्ट बैन है, ये नहीं आता अभी व्हाट्सएप पे बैन आता है। कई बार कुछ पैरामीटर होते हैं रिगार्डिंग ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, वो बढ़ जाते हैं तो वो बैन में आ जाती है। तब उसमें आप नई F&O पोजीशन नहीं ले सकते, पुरानी है वो स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। जैसे अभी आइडिया बैन में आता था, तब नई पोजीशन बाई या सेल नहीं कर सकते। मतलब उसमें ट्रेडिंग नहीं होगी उस टाइम? नहीं, ऐसा? ट्रेडिंग होगी, पुरानी पोजीशन कटेगी। किसी ने बाई किया है वो सेल कर सकता है, किसी ने सेल किया है वो बाई कर सकता है, बट नई पोजीशन नहीं बना सकता। मतलब कि इंट्राडे हो सकता हूँ? मैंने म्यूट किया है सर। हाँ बोलिए। मतलब सर इंट्राडे हो सकता है ओनली, यही ना? नहीं, उसमें काम ही मत करो, कंप्लीटली बैन है। ओके सर, ओके। हाँ, नहीं, कहने का मतलब ये है सर कि ये क्या व्हाट्सएप ग्रुप में आप जैसे लोग अपने जितने भी दोस्त हैं ये शेयर करते हैं तो अपने को पता चलता है, और हाँ, जब अपन को नहीं पता और अपन ट्रेड कर दे तो साला प्लेन हाँ, ही नहीं लग जाए उसके। नहीं बट ट्रेड ही नहीं होगा सर, बैन है। आपका जो ब्रोकर होगा ना वो उसमें ट्रेड ही नहीं करने देगा, बैन हो जाएगा। उसमें सिर्फ कैश में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं, कैश। बराबर है सर? इक्विटी में ही होता है दिक्कत तो, लेकिन एफएनओ में ये थोड़ा सा क्या लुक्रेटिव दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें लॉट साइज देता है और आप 1-2 रुपए के मार्जिन पे अच्छा पैसा बना लेते हो। आपने क्या वर्ड यूज किया? लुक्रेटिव। सर F&O इज अ कैसीनो, इसलिए लुक्रेटिव लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। नहीं, उसमें क्या अपन मूवमेंट तो देख ही रहे हैं सर कि 1-2 रुपए ऊपर या नीचे जा रहा है सर। जाता है तो भी लुक्रेटिव ही होता है, और नहीं जाता है तो कैसीनो के लिए लुक्रेटिव हो जाता है। बराबर है? इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन और सवाल कोई? क्लियर ना? यस सर, यस। अभी देखो मैं बॉटम पे ऊपर जा रहा हूँ। हाँ सर, कितना वॉल्यूम है? हाँ, व्हाट आर द वॉल्यूम ऑफ कॉल? 27 लाख 62,174। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पुट? 23 लाख 35,823। हाँ, अभी बोलो कॉल ज्यादा है पुट कम है ना? हाँ, लिटिल बिट कॉल ज्यादा है, मीन्स राइटर क्या सोच रहे हैं, इतना ऊपर अभी नहीं जाएगा, इतना थोड़ा है ना। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूं और इसका कैंडल बनाऊं तो होली क्रॉस जैसा कैंडल बनेगा, है ना? ऐसा वाला, ऐसा कैंडल बनेगा सर। ऐसा ही कैंडल है ना सर, इन दोनों डेटा को अगर मिला दो तो। हाँ, जस्ट आई एम यूजिंग कॉमन सेंस। मैं कोई हाईफाई चीज नहीं कर रहा। समझ में आया या कंफ्यूजन हो गया? हाँ सर एक बार और समझाओ, समझ नहीं आया। हाँ, बायर्स इधर कॉल का वॉल्यूम कितना हुआ है? 27 लाख समथिंग है ना सर, और पुट का वॉल्यूम क्या है? 23 लाख समथिंग। मीन्स कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है। मैंने बोला हमेशा राइटर के विजन से देखो। तो राइटर क्या सोच रहे हैं, ज्यादातर राइटर क्या सोच रहे हैं कि ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो लोग बेच रहे हैं। गॉट इट सर? मीन्स इतना ऊपर मार्केट अभी नहीं जा सकता है, वो जो अभी ये डेटा बता रहा है। हाँ, ये इतना फर्क भी नहीं है, सिर्फ 3 ऑलमोस्ट बहुत कम फर्क है, 7-8% का फर्क है। बराबर है सर? बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक आइडिया टू सी हाउ वी आर सीइंग द वॉल्यूम्स। क्लियर सर? सेम वे यू कैन थिंक ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो, बट हम उसको डीप में नहीं जाना चाहते। इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट ओपन इंटरेस्ट। क्लियर सर? तो सर ये इस मतलब अब जैसे हमने अभी इसके वॉल्यूम के एनालिसिस किए, तो इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? मतलब अभी मेरे हिसाब से राइटर्स क्या सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, इतना ऊपर नहीं जाएगा। ये तो मतलब क्या इसका मतलब हमें पुट ऑप्शन की तरफ कंसंट्रेट ज्यादा करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये मार्जिन इतना भी डिफरेंस नहीं है सर, इस लेस देन। अभी सर यहाँ 27 लाख है और यहाँ 23 लाख है।
सर यहाँ 27 लाख होता और यहाँ 15 लाख होता तो? सर एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर पुट राइटर ज्यादा है, इसका मतलब सर मार्केट में तेजी होगी सर? अरे यार ये कॉल राइटर्स है, ये कॉल राइटर्स है सर। नहीं सर, इस साइड बोल रहा हूँ सर, पुट की साइड। ये कॉल साइड है और पुट साइड है, ज्यादा नहीं है सर, इट्स ऑलमोस्ट नियर बाय 7-8% का फर्क है। और मार्जिनली ओआई दिया हुआ है, इसका मतलब तो सिर्फ यही अपने को पता चलता है कि इतने सारे जो भी ऑर्डर हैं वो पेंडिंग है, उसमें ये नहीं पता चलता है कि कॉल है कि पुट है। हाँ नहीं, ओपन ओआई है, उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है पता है सर? अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में है अभी? हाँ इतना कॉन्ट्रैक्ट है, 24 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड और 17 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड। मतलब मार्केट इतना नीचे भी नहीं जाएगा। लोगों ने बेचा है ऑलमोस्ट, कितना ज्यादा है सर? 30% ज्यादा है ना सर पुट राइटिंग? यस मीन्स राइटर्स लोग ऐसा सोचे, ये वॉल्यूम डेटा मुझे बता रहा है मार्केट इतना ऊपर नहीं जाएगा, राइट सर? यहाँ थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा नीचे आएगा, और ये बता रहा है मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं सर। गॉट इट सर? ओके। मुझे क्या लग रहा है पता है सर कंफ्यूजन है कि कैसे, मतलब वॉल्यूम के बेस पे आप करेंगे अभी ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा, ये ओआई की बेस पे? डोंट वरी, आगे मैं पीसीआर कवर करता हूँ ना तो आपको क्लियर होगा थोड़ा। बराबर है सर? पीसीआर ये तो मेरे सामने आया तो मैंने दिखा दिया। दिस आल्सो वन वे टू एनालिसिस, डू एनालिसिस विद द डेटा। सर इसमें एक डाउट है। हाँ बोलिए सर। आप पुट्स में 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, हाँ। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये सेलर ही है, बायर भी हो सकते हैं ना? यस, यू आर वेरी नाइस पॉइंट। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, एवरी कॉइन हैज टू साइड, है ना सर? यस। वन साइड बोल रहा हूँ, साइड नंबर 1। इधर लोगों ने बेचा तभी किसी ने बाई किया। भाई बेचने वाला ज्यादा स्मार्ट है राइटर्स, मीन्स वो सोच रहा है मार्केट नहीं गिरेगा तब वो बेच रहा है ना सर? यस। बट मैं दूसरी साइड देख रहा हूँ अभी। दूसरी साइड ऑफ द कॉइन इज व्हाट, कि मैं सोचूं कि भाई ये है, हो सकता है एफआईआई ने हेज किया हो, उसने क्या किया हो, निफ्टी के फ्यूचर बाय किए हो और साथ में पुट बाय किए हो सर, टू हेज द पोजीशन, टू टेक द इंश्योरेंस के मार्केट गिर ना जाए जोरों से। ये भी ट्रूथ है ना सर? पॉसिबिलिटी है सर। पॉसिबिलिटी नहीं, बहुत पॉसिबिलिटी है सर। यस। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्मार्ट मनी। हम थियोरेटिकल जा रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, मींस राइटर्स की नजर से देखिए तो मार्केट इतना नहीं गिरेगा, बट इट मे बी राइटर्स ने बेचा, सामने एफआईआई ने बाय भी तो किया हो सकता है सर। बट इट्स अ वेरी, आई कैन से वेरी हाइपोथेटिकल एनालिसिस। बराबर है सर, है ना? बहुत ही डीप एनालिसिस चाहिए। मैं जो अभी कर रहा हूं जिस ओनली बेस्ड ऑफ द टू कॉइन ऑफ द साइड, मैंने दोनों कॉइन दिखाए। बट अगर आपको प्रैक्टिकली जाना है तो डोंट थिंक दिस वे कि भाई उसने हेज किया होगा, वो किया होगा। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, राइट सर? बट जस्ट सिंपली थियोरेटिकली एंड विद प्रैक्टिकली जाना है तो सिंपल देखो, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हुआ है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ टुडे, राइटर्स आर ऑलवेज राइट, है ना? यस। तो बस अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है, स्पेशली फॉर ट्रेडिंग विथ ऑप्शंस, तो एक ही चीज दिमाग में रखो, राइटर्स आर ऑलवेज राइट। हाँ हो सकता है कई बार एफआईआई ने इधर पोजीशन बाय की हो टू हेज इट, हेज करने के लिए, इंश्योरेंस के लिए, बट मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इतनी ज्यादा नहीं लग रही, राइट सर? मीन्स जो राइटर्स की साइड है वहां पल्ला हमेशा भारी रहता है। क्लियर सर? सर एक बार ओपन इंटरेस्ट वापस बताएंगे? ये रहा ओपन, मैंने ओपन इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं कि व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, तो वो ओपन इंटरेस्ट ओपन करोगे 1 घंटा निकल जाएगा, इसलिए मैं लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, सामने कोई ले रहा है, बेच रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स। वो नहीं देखने का ना फिर? देखने का सर, मैं बहुत सारी चीजें, बट कितनी कवर करूँ सर मैम 1 घंटे में, इसलिए मैं
चीजों को सिंप्लीफाई बनाना चाहता हूँ। देखो अभी मैं थोड़ा डीप में गया, क्वेश्चन आना शुरू हो गया ना सर, है ना? इट्स माय मिस्टेक ना, आई हैव डाइवर्टेड लिटिल बिट माय एजेंडा ऑफ टुडे। क्यों? मुझे सामने मिला तो मैं सोचा चलो बता दूं। अभी नए हैं उनको कंफ्यूजन है, बट जो लोग एक्सपीरियंस है उनको शायद थोड़ा फायदा हो गया, इसलिए मैंने दिखा दिया। राइट मैम? ओके सर। तो ये भूल जाओ अभी, बराबर है? ऑलवेज थिंक राइटर्स की नजर से, इधर हमें आगे एक ऑप्शन दिखाता हूँ, दैट विल मेक यू मोर सिंप्लीफाइड। बराबर है? जो एक्सपीरियंस है वो मैं इधर क्या कहना चाहता हूँ उसका आइडिया लग गया होगा। राइट सर? जो इधर एक्सपीरियंस बहुत सारे बंदे जो ऑप्शन में काम करते हैं उनको इनका इंटरप्रिटेशन आइडिया लग गया होगा कि कैसे देखना है ये चीज। मीन सर, सुहास सर, हाँ बोलिए सर। आपका कहना है कि अगर वो लोग हेज कर रहे हैं, मतलब बाय कर रहे हैं, तो वो लोग जीरो होने के लिए बाय कर रहे हैं एक्चुअली? नहीं, उन्होंने चलो निफ्टी का फ्यूचर बाय किया है कि ऊपर जाएगा, और बराबर है सर, फ्यूचर लॉट बाय किया है, बराबर है, बट उनको लग रहा है शायद मार्केट में क्रैश आया तो वो लोग उसको हेज करने के लिए इंश्योरेंस के लिए पुट भी बाय कर रहे हैं कि मार्केट का तो जीरो ना तो उनके लिए फायदा ही है ना? क्या सर? अगर फ्यूचर बाय किया और पुट बाय करे तो जीरो ना उनके लिए फायदे में ही रहेगा ना? अभी मैं सोच रहा हूँ FII ऑप्शन बाय कर रही है उसकी नजर से, ना के राइटर्स की नजर से। मैंने आपको अदर साइड ऑफ द कॉइन दिखाया कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार इधर राइटिंग हुआ है, मीन्स मार्केट इतना नहीं गिरेगा, राइटिंग बहुत ज्यादा है, मीन्स राइटर सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है ना, राइटर्स ने सेल किया क्योंकि वो सोचा मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बट एज अ इंश्योरेंस जो बड़े बड़े लॉट जिसने बाय किए हुए हैं, सम स्मार्ट मनी यानी ब्रोकरेज हाउस, उसने हेज करने के लिए पुट बाय किए हो सर, है ना सर? इट्स अ हाइपोथेटिकल प्रोबेबिलिटी जिसको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको दूसरी कॉइन की साइड दिखाई। राइट सर? जी सर। अभी कंफ्यूजन क्लियर हुआ? इधर मैं सोच रहा हूं FII ने हेज किया है, मींस बाय किया है, बाय बाइंग पुट्स, क्योंकि वो लोग तेजी में बैठे हुए हैं, बराबर है सर? एक डाउट और है सर। हाँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा है व्हाट इज हेजिंग, है ना? नो सर, मेरा ये डाउट है कि FII को लग रहा है कि फ्यूचर उन्होंने बाय किया है क्वांटिटी में, तो वो पुट बाय कर रहे हैं हेजिंग के लिए। तो वो कॉल भी तो बेच सकते हैं ना सर साथ में, क्योंकि उनको मालूम है जब ऑप्शन बेचना मतलब बेच का ही फायदा है, तो वो कॉल राइट कर सकते हैं सर। वो ऑप्शन बाय क्यों करेंगे? वो डिसीजन हम क्यों ले सर? वो उनका डिसीजन है सर। ये स्ट्रेटेजी बोल रही है कि मैंने कॉल बाय किया। अभी देखो, चलो आप सही जा रहे हो, चलो कि मैंने कॉल बाय किया तो मैं पुट कॉल, मैंने निफ्टी का फ्यूचर बाय किया तो सामने में कॉल बेच देता हूँ, है ना सर? यस सर। हाँ सर। बट कॉल बेचूंगा, मेरा प्रॉफिट कितना है? लिमिटेड। और लॉस? अनलिमिटेड। लेकिन पुट बाय कर रहा हूं तो अनलिमिटेड प्रॉफिट। हाँ, तो कौन सा सही अभी बताओ सर हेजिंग के लिए? हाँ, हेज करना है तो एग्जैक्ट मेरे ऑपोजिट पोजीशन ट्रेड जाना चाहिए, जिससे मेरा ये समझ लीजिए 11,600 का मैंने निफ्टी बाय कर लिया 11,600 के ऊपर, और हेज करने के लिए 11,500 का मैं पुट बाय कर रहा हूँ, बराबर है सर? तो निफ्टी गिरा और 11,500 आ गया तो क्या होगा सर? मुझे 100 पॉइंट का वहां लॉस होगा क्योंकि वो मैंने बाय किया है, बट इधर पुट मुझे थोड़ा रिवॉर्ड दे देगा, बराबर है सर? तो मेरा लॉस कम हो जाएगा सर। गॉट इट सर? यस सर। और ऊपर गया 11,700 आया तो निफ्टी फ्यूचर मुझे फायदा कर देगा, और ये जो ऑप्शन है वो भी थोड़ा नीचे जाएगा, बट वहां लॉस लिमिटेड है, तो आई एम नॉट वरीड। गॉट द लॉजिक सर? इसको बोलते हैं हेजिंग टेक्निक। हेजिंग मैंने बोला था, इट्स अ हेजिंग टूल जिसके लिए ऑप्शन का इन्वेंशन हुआ था। क्लियर हुआ प्रशांत जी? आया सर समझ। हाँ, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए कि आई कांट मूव हेड विद एनी डाउट्स। आगे बढ़ू सर? ये स्लाइड क्लियर है ना? हेलो
ओके, हाँ, आई एम मूविंग अहेड सर। ओके, तो एट द मनी के ऊपर काम करना अच्छा है, बराबर है। अगर आपका विजन बहुत शॉर्ट टर्म है, बहुत लॉन्ग टर्म है, देन यू कैन डू। अदरवाइज फ्रॉम माय साइड, एट द मनी इज द बेस्ट डील टू डील विद द मार्केट एज ए एटीएम। सर एट द मनी का शॉर्ट फॉर्म होता है एटीएम, और एटीएम का दूसरा शॉर्ट फॉर्म होता है जो पैसे बाहर निकालता है। सो फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर, एटीएम इज एट द मनी। सर ये क्यों लिखा हुआ है आपने, irrespective of proper analysis, मतलब एनालिसिस ना भी हो तो? आपने एनालिसिस कर लिया, बाय कर लिया, एट द मनी बाय किया, बराबर है सर, लेकिन आपका एनालिसिस ही गलत है, तो कैसे जाएगा सर? आप सोच रहे हो कि मैं चलो एट द मनी काम करूंगा, फायदा होगा, 11,600 का कॉल बाय कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, बट मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपको लॉस भी तो होगा सर। हाँ, गॉट इट सर। ओके, एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट कि आपका एनालिसिस क्या बोल रहा है। आगे बढ़ रहा हूं सर, क्लियर हुआ ना तिवारी जी? हाँ सर, मैंने उसको इस सेंस में ले लिया था, आप एनालिसिस करो ना करो, एटीएम ले लो तो फायदा होगा। सर वेबिनार है, इतना भी मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, तो एक वर्ड से पीसीआर, बराबर सर। पीसीआर मीन्स पुट call ratio, means put volume divided by call volume. Same thing you can apply put open interest divided call open interest also. हाँ sir, this is also another term जो मैंने आपको अभी दिखाया। PCR is greater than 1 means more puts in the system, right sir? And PCR is less than 1 means more calls in the system. PCR 1 is equal to neutral market, means call और put almost parallel चल रहे हैं। means simply अगर call put का मैं कैंडल बनाऊं तो डोजी आता है, कंफ्यूजन, न्यूट्रल मार्केट। क्लियर सर? पीसीआर में कोई कंफ्यूजन? हेलो सर, जो टेबल था उसमें इसका ऑप्शन रहता है क्या कि निकालना पड़ता है? मैं दिखाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखो अभी एक एफबीआई इन्फो लाइन का पेज है, वहां पीसीआर डायरेक्टली मिल जाता है। ये साइट मुझे अच्छी लगती है, तो पीसीआर के लिए मैं जनरली इसको देखता हूँ। तो देखो 24 नवंबर की एक्सपायरी है, बराबर है सर? अरे क्या हो गया, हाँ ये रहा, बराबर 24 नवंबर की मंथली एक्सपायरी है। 30 नवंबर भी लगा सकता हूँ, 10 भी लगा सकता हूँ, 17 भी लगा सकता हूँ, बराबर है। तो मैं जनरली ऑप्शन है, तो अभी इधर देखिए पीसीआर कितना है सर? अकॉर्डिंग टू द ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो 1.41 है सर, मीन्स पुट ज्यादा है सर। यस सर। बट बैंक निफ्टी में ये अप्रोक्सीमेट अपर ही बोल सकते हैं, मीन्स इधर ऊपर जाने की जगह ज्यादा है सर, है ना? जनरली क्या बोलते हैं, निफ्टी का पीसीआर 1.7 पहुंच जाता है ना, 1.7 इज अ ओवरबॉट, बराबर है सर, क्योंकि पुट इतने बढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। क्लियर सर? सिमिलरली हियर आल्सो you can clearly see bank nifty is yet having some steam to go upside. 1.70 तक जाना अच्छा होता है, उसके नीचे फिर तुरंत फॉल आ सकता है उसके बाद, बट 1.70 लुकिंग एज अ ओवरबॉट इन पीसीआर टर्म्स। कोई कंफ्यूजन सर इसमें? पुल एंड कॉल सर, पुट एंड कॉल अभी जैसे पीसीआर ओआई है, पीसीआर वॉल्यूम है, तो अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर देखें 1.05 है ओआई में, और वॉल्यूम में 0.85 है, तो इसके हिसाब से तो ये वॉल्यूम वाला पुट कम है, कॉल बेरिश है, तो ये कंट्राडिक्टरी नहीं हो गया ये दोनों बैंक निफ्टी के लिए? मैं अभी क्या देख रहा हूँ सर, आइंस्टाइन थियरी ऑफ द रिलेटिविटी। माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज निफ्टी। निफ्टी क्या दिखा रहा है? ऊपर बुल में है सर, बराबर है सर, एक के ऊपर है तो बुल है, उसको जा सकता है 1.70 तक। अगर 1.70 तक चला जाएगा देन आई एम वरीड कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है अभी। और सिमिलरली बैंक निफ्टी, हमको ही पता है बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग,
सिंस लास्ट 2 मंथ। तो अभी बैंक निफ्टी अच्छा जाए तो अभी मुझे क्या लगता है बैंक निफ्टी कैन मच मोर गो अहेड देन निफ्टी, क्योंकि वहां ऊपर जाने के लिए जगह ज्यादा है जो हमको मिल रहा है लास्ट 1 वीक में। बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी इन सिंस लास्ट 1 वीक। अगर आप बुल साइड है तो बैंक निफ्टी को चूज कीजिए, और अगर आप बेयर साइड है ना अभी तो निफ्टी को चूज कीजिए इफ यू आर अ इंडेक्स ट्रेडर। क्लियर हुआ तिवारी जी? हाँ सर। मार्केट इज मोर अबाउट आइंस्टाइन थियरी ऑफ द रिलेटिविटी, है ना, कि निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी इतना ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी कितना ऊपर जा रहा है, रिलेटिव है एक दूसरे के साथ। क्योंकि निफ्टी में एचडीएफसी जैसे हाई बीटा स्टॉक भी है, अरे हाई वैल्यू स्टॉक भी है जो निफ्टी को हिलाते हैं, और वो बैंक निफ्टी में भी है सर। क्लियर सर? इसमें कोई कंफ्यूजन पीसीआर में? नहीं सर, ठीक है। इससे वेरी बहुत डिटेल में मत जाइए। पीसीआर 1 के ऊपर है मींस बायर्स ज्यादा है, पीसीआर 1 के नीचे है मींस सेलर्स ज्यादा है, बराबर है सर। और ऊपर 1.70 तक जाता है तो उसको हम ओवरबॉट बोलते हैं, और नीचे 0.5 0.7 तक जाता है ना तो उसको ओवरसोल्ड बोलते हैं, बराबर है सर। मींस पीसीआर 1.7 पहुंच गया, इधर जनरली मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का ज्यादा यूज होता है, हाँ वॉल्यूम से। ओपन इंटरेस्ट इज मच मोर बेटर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो अगर समझ लीजिए निफ्टी का 1.7 हो गया, बराबर है, तो आई एम लुकिंग सम प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट एंड इट अप्लाइड फॉर स्टॉक स्पेसिफिक आल्सो। लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ द स्टॉक। देखो इंडेक्स है ना, यहाँ स्टॉक इसमें ओवरसोल्ड का क्या बताया आपने? ओवरबॉट तो 1.7 बदला पीसीआर का, ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड मतलब 0.5 0.7। अच्छा, मतलब आधा करीबन, नहीं? हाँ देखिए सर, जील बराबर है सर, कितना है सर रेशियो? 0.9 बेरिश है सर। यस सर। तो इस तरह हम ये पूरी सीट भी डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं और फिल्टर भी कर सकते हैं। एनएमडीसी बुलिश है ना सर, बहुत भागा ना। इंडस्ट्री बहुत फास्ट भागा ना। जील भी तो भागा ही है सर 190 में। हाँ पर देखते हैं कल का डेटा, अभी भी बेरिश है, इसका मतलब जो रिजल्ट आ जाए उसके नहीं सर, जैसे ये 197 से 200 ने कितना 4-5 चल रहा ही है, और 3-4 दिन से मतलब पिछले वीक तो भागा ही होगा पूरे वीक। एक बात बोलूं सर, यस सर, 0.91 रेशियो गया, हो सकता है जब उसने भागना शुरू किया तब वो 0.5 0.7 हो। मैं भी मैंने देखा तो मैं भी हो सकता है 1 पॉइंट या सॉरी मैं उल्टा जा रहा हूँ, 1.7 हो और फिर अभी कम होके नीचे आया हो, ऐसा भी हो सकता है ना सर? यस सर। हाँ तो ऑलवेज ये क्या हो गया, हाँ ओके, ये सब अभी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता, ऑलरेडी आ चुका है, बराबर है सर। एनएमडीसी बहुत फास्ट मूव दिया, जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत मूव दिया ना, अच्छा सर। इंडसइंड ने अच्छा मूव दिया, जिसने अच्छा मूव दिया है एक्सेप्ट जील, मोस्ट ऑफ आर ट्रेंडिंग अबव 1। दूसरा कौन सा है 1.16, अशोक लेलैंड, बराबर है ना सर, हमारा ट्रेड था ना पोजिशनल बाय। This is the way you can do analysis of the PCR. Both way possible, open interest also and volume also. सर कितना मिनिमम पीसीआर, मतलब अगर हम कॉल का सोचते हैं या पुट का सोचते हैं तो कितना मिनिमम पीसीआर पे हमें कंसीडर करना चाहिए कि पोजीशन? सर 1 के ऊपर जाए then it will look like a breakout. 1 के ऊपर है तो बुल साइड, 1 के नीचे है तो बेयर साइड है, बराबर है सर। हाँ बट डोंट गो विद दिस रैंडमली, इट्स अ सपोर्टिंग एक्टर फॉर अस। हम चार्ट्स के ऊपर ज्यादा काम करते हैं तो चार्ट्स के ऊपर फोकस करिए, देन यू कैन सी हियर। ठीक है, सपोर्टिंग डेटा। हाँ ये सपोर्टिंग देता है, हाँ बट जो लोग चार्ट नहीं देखते ना सर, कुछ लोग होते हैं, देयर इज ओनली 2 वे टू डील विद द मार्केट, सॉरी 3 वे। 1 इज डेटा एनालिसिस जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, सेकंड वन इज अ चार्ट एनालिसिस, एंड थर्ड वन इज टिप्स, रूमर, न्यूज।
अभी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की क्या है, या आप डेटा पे ऊपर काम करो या चार्ट के ऊपर काम करो, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है देन इट वुड बी बेस्ट, है ना सर। बट इट कम्स विद द एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, देन यू कैन ऐड कि चलो भाई उसका ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देख लेते। इट्स अ लीथल वेपन, हाँ सर, चार्ट एनालिसिस विद ऑप्शन डेटा एनालिसिस, इट्स अ लीथल वेपन, बट इट नीड too much expertise experience, then only you can deal with it. अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो कई बार क्या होगा, चार्ट बोल रहा है बाई, जैसे जिल में हुआ, बट ऑप्शन बोल रहा है स्टिल बेरिश साथ है, कंफ्यूज हो गया ना सर, कौन सा ट्रेड ले अभी, आप बोलिए तिवारी जी अभी कौन सा ट्रेड लोगे सर, तो ये दिक्कत आती है, राइट सर। हाँ, ये दिक्कत आती है। इसलिए अगर आप मार्केट में नए हो, फॉलो सिंपल थिंग, या डेटा एनालिसिस करो या चार्ट एनालिसिस करो, देन अपना एक्सपोजर बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, देन यू कैन डील विथ इट, राइट सर। हाँ, हेरा फेरी याद है ना, हेरा फेरी का एग्जांपल, हेरा फेरी का हीरो कौन था सर? अक्षय कुमार, परेश रावल। परेश रावल था हीरो। पहला नाम किसका लिया, पहला नाम किसका लिया सर? अक्षय कुमार। और आप अगर मैं सवाल ये पूछूं कि किसने पिक्चर हिट करवाई, तो आप क्या बोलेंगे सर? परेश रावल। परेश रावल, बराबर है ना सर। तो पिक्चर का हीरो कोई होता है, लीड कोई कर जाए, आपके एनालिसिस के ऊपर है, आपके एक्सपोजर एक्सपीरियंस के ऊपर है, बराबर है। कई लोग डेटा के ऊपर भी काम करते हैं। अभी वेदांता कितना है पीसीआर? ओवरबॉट है, हाईली ओवरबॉट, कभी भी वो गिर सकता है। मेटल स्टार जेएसडब्ल्यू का भी वही है सर, हाँ, इट्स अ हाईली ओवरबॉट, बट फिर भी करेक्शन नहीं आ रहा सर, है ना। 1.75 के ऊपर प्रॉफिट, बट जनरली यूज ओपन इंटरेस्ट इज अ मोर अबाउट मार्केट, मार्केट का व्यू ज्यादा क्लियर होता है। फॉर दैट आई एम यूजिंग, आई रेयरली गो टू स्टॉक स्पेसिफिक, हाँ, मैं मार्केट के ऊपर का व्यू जानने के लिए पीसीआर देखता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ू सर? हाँ सर। हाँ, तो पीसीआर क्लियर्ड। उसके बाद का अभी मैं दिखा रहा हूँ प्राइस एक्शन विद ऑप्शन, कि भाई हम जनरली चार्ट्स के ऊपर ज्यादा काम, 90% आवर वर्क इज डन बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, जो हमारे मेरे सब स्टूडेंट्स है, बराबर है सर। तो देख लीजिए सर, ये आपके सामने चार्ट है, दिस अ चार्ट ऑफ द, कौन सा स्टॉक है वो भूल भी गया सर। ओके, इसका ब्रेकआउट हुआ 198 के ऊपर और फिर वो ब्लास्ट हो गया। अभी सर कॉल का क्या हुआ होगा, कोई बताएगा? मैंने कॉल बाय किया है तो उसकी सिचुएशन क्या होगी सर? रॉकेट, रॉकेट हो गया होगा, राइट सर। तो बूम हो गया होगा। ओके, नाउ सिचुएशन नंबर 2, ये ब्रेकआउट हुआ सर और आपने कॉल बाय कर लिया, क्या सिचुएशन हुई होगी सर उसकी? मूवमेंट देखिए चार्ट्स के ऊपर। अभी तो ये अभी ऊपर की कैंडल तो अब रेंज में आ गई है, मतलब अभी आगे फर्क तो जा नहीं रही है। हाँ, तो अभी ऑप्शन क्या क्या हो सकता है सर? तो टाइम वैल्यू डिक्रीज होगी। हाँ, और तो कंसोलिडेशन हो रहा है, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट में हो गया, लॉस में हो गया सर? लॉस में होगा, लॉस में, या मार्जिनली प्रॉफिट में होगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, या थोड़ा लॉस होगा, है ना। देखो मेरा एरो देखो, थोड़ा ऊपर से है, थोड़ा, है ना सर। क्लियर सर, ये थोड़ा बहुत लॉस में भी हो सकता है या कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकता है, बट इतना ऊपर नहीं होगा क्योंकि इसमें प्राइस ऊपर जा ही नहीं रही सर, प्राइस में वॉल्यूम ही नहीं, मोमेंट ही नहीं आ रही सर। व्हाट द लॉजिक सर? अभी ये दूसरा स्टॉक है सर, इसका ब्रेकआउट हुआ सर तो हमने बाय कर लिया। अभी सी, इसके सी की क्या हालत हुई होगी सर? लॉस, लॉस हुआ होगा सर, है ना। डिफरेंस पता चल रहा है सर सबका? अभी और दिखाता हूँ सर, ये गेल इंडिया है क्या? हाँ गेल है, सही है सर, गेल है। फिर एक चीज जरूर दिमाग में आता है, सपोज जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ब्रेकआउट हो करके फिर जो ब्रेकआउट पॉइंट को टच करने के लिए आ रहा है, अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है तो फिर सी परचेज करना चाहिए क्योंकि दाम घटा है सी का। हाँ, अभी देखो आपका सवाल का जवाब आपने दे दिया
irrespective of proper analysis, है ना सर? ठीक है, आपने सवाल पूछा था और आपने जवाब दे दिया सर। रीटेस्ट करने आता है। हाँ, रीटेस्ट कर लिया। एंड लास्ट ऑप्शन सर, इधर क्या हुआ होगा सर? कॉल का लॉस हुआ होगा सर, प्रीमियम वेटिंग लिटिल बिट डाउन हुआ होगा, है ना सर? गॉट इट सर? हेलो, हाँ सर, चारों के चारों सिचुएशन समझ में आई सर? दिस इज हाउ आई एम गोइंग शोइंग यू कि आप प्राइस एक्शन के साथ कैसे डील कर सकते हैं विद ऑप्शंस, बराबर है सर? कि कैसी मूवमेंट आती है तो क्या हो सकता है। तो अभी इस 4 स्लाइड के ऊपर से आपको क्या लग रहा है, कैसे स्टॉक पसंद करने चाहिए, कैसे ब्रेकआउट पसंद करने चाहिए सर? हाँ, मोमेंटम वाले, बहुत बढ़िया। मोमेंटम वर्ड्स 52 वीक हाई वाले ब्रेकआउट वो भी सही है, बट मोमेंटम वाले कि जहां से ऊपर जाने के ऊपर प्रोबेबिलिटी ज्यादा वो फट जाए, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील पहला स्टॉक था, वो जेएसडब्ल्यू स्टील था, ये वाला जेएसडब्ल्यू स्टील, अरे सॉरी जिंदाल स्टील एंड पावर, बराबर है? तो रॉकेट हो गया सर। तो ऐसे स्टॉक चाहिए जहां फटाक से मोमेंटम आ जाए। अभी कई तो अभी देखो, आप आईटीसी चूज करोगे, वहां मोमेंटम आता है फटाक से? नहीं आता, नहीं आता। अभी उसके लिए भी एक टर्मिनोलॉजी है, वो मैं समझाता हूँ। हाँ, तो व्हाट्स आवर क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? हाउ टू फाइंड वॉलेटाइल स्टॉक के जहां मूवमेंट अच्छी आती हो, वॉलेटिलिटी अच्छी हो, ऊपर नीचे ज्यादा होता हो, तभी हमको प्रीमियम का वैल्यू बढ़ेगा। तो हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू फाइंड अ वॉलेटाइल स्टॉक? So let's move ahead. Beta, it's one of the parameter, huh? Means volatility, right sir? Beta is a measurement of the stock's volatility in relation to the overall market, right sir? देखो अल्फा बीटा थीटा गामा सब होता है, बट मैं एक ही चीज के ऊपर आपको फोकस करवा रहा हूँ, दैट इज अ बीटा। बीटा ऑफ द स्टॉक मीन्स स्टॉक की वॉलेटिलिटी एज कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट मीन्स निफ्टी। सर बीटा इज ग्रेटर देन 1 मीन्स volatility is a better than benchmark nifty, and beta is greater than 1 means volatility is a less than benchmark nifty. अगर volatility ज्यादा है तो हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं सर, और volatility कम है मीन्स लाइक आईटीसी, और volatility ज्यादा है लाइक जिंदाल स्टील एंड पावर, तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सर बीटा ज्यादा है तो वी आर गेटिंग गुड मोमेंटम विद ऑप्शन बाइंग, और बीटा कम है मतलब it's a good for selling. But again important note sir, option writing itself is a riskiest way to deal with the market. ये मेरा स्टार मार्क रहेगा ही रहेगा while I am suggesting or guiding to write the options, क्योंकि writers are always right, but कौन से writers जो experience हो, प्रोफेशनल हो, ना कि नए नए मार्केट में आके राइटिंग करना शुरू कर दे। सर मोमेंटम ब्रेकआउट का भी आपने बताया, तो एक बार अडानी रिपोर्ट देखते हैं ना। हाँ वो बाद में करते हैं सर, स्टॉक से, डोंट वरी सर। हाँ, तो बीटा 1, बीटा इज ग्रेटर देन 1 मींस स्टॉक इज हैविंग गुड volatility overall as compared to market, and beta is less than 1 means volatility is a lesser than benchmark index, बराबर है सर? तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो हाउ टू फाइंड ऑल दिस थिंग। तो सर देखो ऑलरेडी बीटा इंडेक्स है निफ्टी का, जिसको बोलते हैं निफ्टी बीटा इंडेक्स, ये हर महीने अपडेट होता है। तो देखो जुलाई तक का डेटा उसमें मुझे अभी मिल जाएगा, इट्स नॉट ओपनिंग। हाँ ओके, तो देखिए पूरा निफ्टी का हाई बीटा 50 का इंडेक्स है सर, उसका पूरा इंडेक्स भी है। देखो ये देखो बीटा डाउन हो गया ना, ओके, तो इसमें देखो कुछ हाई बीटा स्टॉक है, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, बट अगर हम इसका कंस्टिट्यूट देखेंगे तो सब हाई वॉलेटाइल स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा सर।
ये देखो, दिस ऑल आर हाई बीटा स्टॉक जिसमें मोमेंटम अच्छे मिलते हैं, जिसके ब्रेकआउट के ऊपर, ब्रेकडाउन के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको ऑप्शन प्रीमियम अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अपोलो, अशोक लेलैंड, दिस ऑल आर गुड हाई बीटा स्टॉक, जो अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाता है ना सर, अरे निफ्टी को इधर हम बेंचमार्क गिनते हैं, तो दीज आर हाई बीटा स्टॉक, मगर निफ्टी से ये ज्यादा ऊपर नीचे होता है। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा ना, तो ये एज कंपेयर टू उससे ज्यादा पॉइंट ऊपर जाएगा। निफ्टी 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो एज कंपेयर टू डेट ये ज्यादा पॉइंट नीचे जाएगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मोमेंटम ट्रेड मिलेगा। व्हाट इट सर? हाँ हेलो, सर इसका यूआरएल दे देंगे प्लीज। हाँ वो दे देता हूँ, लिंक आपको व्हाट्सअप करता हूँ, बट यू कैन गूगल ऑल्सो, डोंट वरी। गूगल हैज आंसर ऑफ 90% क्वेश्चन। हाँ सर, ठीक सर। हाँ आई हैव जानबूझ के सर मैंने लिंक किया इधर। सर जब तक आदमी खुद ढूंढ के काम नहीं करता ना सर, वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद ढूंढो। आपके पास सर्च वर्ड है, क्या सर्च वर्ड है सर? What should be search word as of now? High beta stocks. बस ग्रेट। अगर आप खुद ढूंढ के ग्रुप में लिंक डालोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी सर। मेरा काम क्या है सर? बीइंग अ मेंटर, रास्ता दिखाना, गिव डायरेक्शन। हाँ, चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा सर। मैं आपके पैर पकड़ के आपको नहीं चला सकता, राइट सर? टिप प्रोवाइडर वही करते हैं, आपके पैर पकड़ के आपको चलना चलाते हैं सर, जो कभी होने वाला नहीं है सर। और टीचर क्या करता है? टीचर को पता है स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, बट वो क्या डायरेक्शन दिखाएगा कि स्टूडेंट अपने खुद के पैरों के ऊपर चढ़े। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनी टीचर और मेंटर। बराबर है सर? हाँ राइट तिवारी जी, एकदम सही। हाँ, it's always give lesson is always better than to make people handicapped. मैंने आपको रास्ता दिखा दिया ना सर, अभी शायद मैंने जो आपको रास्ता दिखाया ना उसके ऊपर आप और ज्यादा काम कर सकते हो ना सर। क्लियर सर? बीटा इंडेक्स। और एक रास्ता है सिंपल वे कि मैं ओपन करूं, ओके, मैं ओपन करता हूं मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल ओपन किया, अरे पेज इज नॉट वर्किंग। साइट मिल गई, निफ्टी indices.com नाम से साइट है, उस पे नहीं moneycontrol.com है ना सर, ये आ गया मनी कंट्रोल। ओके बराबर है सर। यहाँ ये तो कोई दूसरा एडवर्टाइजमेंट आ गया सर, ऊपर moneycontrol.com पे क्लिक करिए, ये राइट आ गया। हेलो, अभी देखिए सर, आपकी आवाज कट रही है, जो भी पूछ रहा है। अभी देखो, आप कोई स्टॉक का नाम बोलिए सर जिसके ऊपर आपको उसका बीटा चेक करना है। सर मारुति। मारुति, तो देखो मारुति सुजुकी का आ गया, मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो उसका पूरा डिटेल्स आ जाता है, स्टॉक का मूवमेंट, एनएससी, बीएससी। इधर आता है बीटा। कितना बीटा है सर? 1.20 मीन्स निफ्टी से अच्छा मूव देगा ये। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया तो ये उससे परसेंटेज वाइज ज्यादा मूव देगा, 0.20 पॉइंट्स, है ना सर? 50% मूव ज्यादा मिलेगा सर इसमें, सिंपल वे, राइट सर? और दूसरा स्टॉक बोले जो आपको पता हो, जो SRT फाइनेंस। कौन सा सर? SRT फाइनेंस। SRT, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। SRT फाइनेंस में सर वॉल्यूम ज्यादा आते नहीं। वाओ, हाई बीटा स्टॉक ना सर? हाँ क्लियर सर? सर इसमें 57 पॉइंट ज्यादा देगा। हाँ, मींस निफ्टी 100 पॉइंट गया ना तो ये 50 पॉइंट ज्यादा जाएगा अकॉर्डिंग टू रेशियो। बजाज फाइनेंस। हाँ, दिस ऑल आर द हाई बीटा स्टॉक। कोई ऐसा बोलिए जिसका बीटा डाउन मिले। 1.47, गुड ना?
these are good trading stock with options. सर रिलायंस का क्या हो? रिलायंस का ऑलमोस्ट निफ्टी जितना ही होगा, कॉमन सेंस है ना सर? बराबर है सर? हाँ सर। वन ईयर सर टीसीएस अडानी पोर्ट देखो। रिलैक्स अडानी पोर्ट देखो। अभी देखो आईटीसी दिखाता हूँ। आईटीसी भी शायद पैरेलल ही है, 1 के आसपास ही है। सीधा बीटा एकदम थका हुआ। एक बात बोलो सर, सम प्रोफेशनल ट्रेडर्स आर देयर इन द मार्केट। हाँ, वो हर रोज सुबह उठ के क्या करता है पता है सर? आईटीसी का कॉल राइट करते बेच देते हैं सर। 70-80% टाइम दे आर इन अ प्रॉफिट। व्हाट द लॉजिक सर? हाँ, बीटा देखो 0.65, यानी निफ्टी 100 पॉइंट भी ऊपर जाएगा ना, ये उससे 30% डाउन जाएगा सर, ऊपर नहीं जाएगा। और एक सवाल है आपसे, अगर ये बीटा माइनस हो तो क्या सोचोगे सर आप? हाँ, कॉमन सेंस यार, बीटा माइनस हुआ तो हाउ यू एनालाइज द थिंग? वॉलेटिलिटी का मैं गेन नहीं देगा। नहीं सर, वो कंप्लीटली आउट परफॉर्म करेगा। मतलब निफ्टी नीचे जा रहा है तो वो ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है तो वो नीचे जा रहा है, पूरा उल्टा। सर एग्जांपल दिखाओ कोई स्टॉक कैसा माइनस बीटा वाला। ढूंढना पड़ेगा, गूगल करिए सर, आप मुझे ग्रुप में डाल के दीजिए। असाइनमेंट ऑफ टुडे फॉर यू टू फाइंड नेगेटिव बीटा स्टॉक, राइट सर? ओके सर, ओके सर। रास्ता दिखा दिया, अभी चलना आपको खुद है। थैंक यू। तो बराबर है सर। और मैं राह देखूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट ग्रुप में कब स्क्रीनशॉट डालो लिस्ट ऑफ हाई बीटा स्टॉक। बराबर है सर? मींस अरे सॉरी, लिस्ट ऑफ माइनस बीटा, लो बीटा। अभी माइनस बीटा, माइनस नेगेटिव। अभी समझ लो निफ्टी अभी ऊपर जा रहा है, हाँ सर, और इसका बीटा माइनस दिखा रहा है कोई स्टॉक का, तो आप क्या सोचोगे वो स्टॉक की क्वालिटी? हाँ प्रशांत जी, निफ्टी अभी सुपर बुल में है ना सर, बट कोई स्टॉक का बीटा माइनस है तो आप उसको एनालिसिस कैसे करोगे? वो स्टॉक के शायद बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है। नहीं सर, नहीं सर, कचरा स्टॉक। हाँ सर, सिंपल है। अगर मैं बारिश में भी छाता बेच नहीं पाता तो मेरे छाते की क्वालिटी क्या होगी सर? हाँ सही है सर। और अगर कोरोना के वक्त मार्केट जोरों से गिर रहा था तब मुझे कोई ऐसा स्टॉक मिले जो बहुत अच्छा जा रहा था, अबोव 1 बीटा। सर गार्डन रीच। हाँ, गार्डन रीच शिपिंग ऐसा कुछ था। हाँ वैसे तो बहुत सारे स्टॉक थे जब निफ्टी बहुत जोरों से गिर रहा था ना, दे आर स्टेबल। पतंजलि, हाँ, दे आर द परफॉर्मर। जब पेंडेमिक में वो स्टॉक इतना अच्छा चल रहा है, जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो रूटीन मार्केट में तो अच्छा ही चलेगा ना सर? हाँ सर, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और व्हाटएवर एनालिसिस इज मोर अबाउट कॉमन सेंस। इट्स नॉट अबाउट, हाँ रुचि सोया छोड़ दो सर, इट्स एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर इन द मार्केट। हर भागती हुई चीज सोना नहीं होती सर। रिलायंस इज आउट परफॉर्मर। रिलायंस चल रहा है। हाँ, रिलायंस इज आउट परफॉर्मर, या कह सकते हैं मार्केट को रिलायंस ही चला रहा है सर, बिकॉज इन हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन निफ्टी। बराबर है सर? यस सर। रिलायंस इज अ बेंचमार्क स्टॉक ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट। गॉट इट सर? कल भी देखते हैं सर, डील हुई है किशोर बियानी जी से के साथ, फ्यूचर। बराबर है सर? रिटेल का देखते हैं सर। क्लियर सर? बीटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बीटा? हेलो? हाँ सर, एकदम बढ़िया समझ गए। क्लियर सर? अभी लेट्स बैक टू द स्लाइड। So how you can, there are so many other things also. Security VAR होता है, daily volatility, these also good parameter to find volatile stock.
बट ये बीटा मुझे सिंप्लीफाई लगता है, वो सिंपली मनी कंट्रोल से मिल जाता है, इसलिए और कुछ नहीं। एंड वी आर गिविंग हाई बीटा स्टॉक इंडेक्स ऑल्सो, जो निफ्टी खुद बोल रही है कि भाई दिस अ हाई बीटा स्टॉक, इसमें ऑप्शन में काम कर सकते हैं। तो लेट मूव अहेड। क्या है सर ये? व्हाट इज दिस? और क्या दिख रहा है? आप बोलो, ये इमेज के ऊपर से आप क्या सोच सकते हैं? और कुछ? और कुछ? टाइम डीके हो रहा है। हाँ, और कुछ? और कुछ? डाउन ट्रेड दिख रहा है सर। हाँ, प्लीज सिंपल है सर। आइसक्रीम को जितना ज्यादा पकड़ के रखोगे वो क्या करेगी? पिघल जाएगी। ऑप्शन मीन्स आइसक्रीम। आइसक्रीम आती है, उसको फटाफट खा लो। मीन्स सिंपली मोमेंटम के ऊपर काम करो। आपको पता है ये साइडवेज जाएगा तो छोड़ दो, आपको लॉस में डाल देगा। ऐसी आइसक्रीम पकड़ो, हाथ में पकड़ के ज्यादा रखोगे तो पिघल जाएगी। तो ऑप्शन को ज्यादा पकड़ के मत रखो। ऑलवेज वर्क ऑन मोमेंटम। साइडवे मार्केट है, स्ट्रिक्टली अवॉइड ऑप्शन। इट्स गुड फॉर राइटर्स, not for buyers. Strictly avoid. If you are a buyer, sideway market is not good for you. Sideway market is a best for writers. If you are a writer, your focus should be sideway market. Clear sir? Again I muted all. तो आइसक्रीम को याद में रखो जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करो। ज्यादा पकड़ के रखोगे तो यू विल बी इन अ लॉस मोस्ट ऑफ द टाइम। मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम देगा, साइडवे जाएगा तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। क्लियर सर? एक्चुअली आई एम ऑलरेडी क्लियरिंग डाउट्स इन बिटवीन आल्सो, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज क्लियर योर डाउट्स। आई विल ट्राई ऑन माय लेवल बेस्ट टू गाइड यू। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑप्शन? हाँ सर, अब जैसे हमने डिस्कस किया कि एक तो एट द मनी ऑप्शंस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। दूसरा कुछ बता रहे थे कि बेस्ट टाइम होता है जहां पे जब हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए। वो टाइम इनफ है। राइट सर। अभी महीने की अभी एक्सपायरी शुरू हुई है सर, है ना? तो मुझे एट द मनी ऑप्शन है ना, वो भी महंगे मिलेंगे क्योंकि टाइम बहुत है सर, है ना? बट 10 तारीख के बाद काम करते हैं, 10 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद टिल 20-25 तारीख, तो मुझे थोड़ा रीजनेबल प्राइस मिलता है। और एक्सपायरी के नजदीक काम करूंगा तो बहुत सस्ता मिलेगा क्योंकि अभी टाइम वैल्यू बची नहीं है। अगर एक्सपायरी के नजदीक काम करना है तो ऑलवेज वर्क ऑन मोमेंटम, कि भाई फट जाएगा तभी काम करो। बराबर है? मींस बेस्ट टाइम फॉर सेफ ऑप्शन ट्रेडिंग इज नियर अबाउट 10th of the month till 10 to 15 days। बराबर है? गॉट द लॉजिक सर? ठीक है, बट एक ये भी पॉइंट सर हो सकता है कि अब जब हम एक्सपायरी के पास अगर ऑप्शंस का सोचेंगे तो उस वक्त लोग स्क्वायर ऑफ भी ज्यादा करते रहते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक्सपायरी के नजदीक काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी कम है, आपको सस्ते में भी मिलेंगे। बट वहां हम काम करेंगे तो कैसे स्टॉक चूज करने कि वो फट जाए, साइड में भी जाएगा, यू विल बी इन अ लॉस। बराबर है ना सर? ठीक है सर। डाउट क्लियर हुआ सर? क्लियर ना? हाँ सर, हाँ। There is no uniform formula to be successful in the option trading or any trading, हाँ सर? सारी वालों दिन 1:30 बजे बाद में ठीक रहता है काम। हाँ, वो 1:30 बजे बाद का मोमेंटम अच्छा होता है वैसे। ऑप्शन में प्रीमियम बहुत सही रहता है उस टाइम। हाँ, क्योंकि 1:30 बजे का बाद का जो मूवमेंट होता है ना मार्केट का, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वन डायरेक्शनल। गॉट इट सर? इसीलिए बोलता हूँ ना, 1-1:15 बजे बाद काम करो, 12 से 1 आराम करो। 12 से 1 का जो टाइम है ना, दिस इज अ टाइम फॉर ऑप्शन राइटर्स। मार्केट साइडवेज जाता है एंड दे वांट मार्केट प्राइस, अरे स्टॉक का इंडेक्स का प्राइस नहीं बढ़ेगा ना तो भी वो लोग प्रॉफिट में होंगे क्योंकि टाइम नीचे हो रहा है, टाइम वैल्यू डाउन हो रही है। क्लियर फ्रेंड्स? हेलो? यस सर। So if you like my teaching style, mentoring style, you can refer my name. My next batch is, you are already trained with me, you are benefited, you are getting advantage from these all the teaching technical skills. You can refer my name to your friends. My next batch is starting from next week.